हेलो। ओके मलिक, एक सेकंड स्टार्ट करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो तोड़ मालिक, what we have started with yesterday, a conceptual discussion on what is a strategic management. So if I discuss, or if I any time I discuss with you that I am having strategic management with me or strategic management with you, what does it interpret? It does not interpret that we are having strategy. It means we are having strategy. We have done already analysis for that strategy. We have already set our vision, mission, goals and objectives. And along with that, okay, we have not only crafted strategy, we also have implemented that strategy. And along with implementation, we also did what? Evaluation. And only evaluation has been done or corrective action has been taken? Corrective action. So technically, what is the corrective action and other things we'll discuss today on. Okay, but precisely, first of all, whenever I discuss with strategic management definition, what is the definition of strategic management? It is a process, no process, managerial process. Please do understand that word matters a lot. It is a managerial process. Okay, of how many things? 5 things. 5 things क्या कहते हैं? Developing a vision, mission, goals and objectives. Second, doing analysis. Which analysis? 2 analysis: organization analysis and environment analysis. Third, formulating strategy, implementing strategy, and last point, evaluating strategy and taking corrective actions. Okay, I hope 5 points are very clear at your end. Okay, somewhat emphasize what we have discussed yesterday. We'll do on that, and later on we'll go on some managerial concept today. So agenda for today, we'll be discussing some examples again on what we discussed yesterday. Okay, few of the example to make more polish. Okay, so we would have discussed this example yesterday also, but thing is that we have already understood. Now we have adapted. It is almost 24 hours when the things have settled down. Now we can go ahead of the concepts with respect to this point. Secondly, we'll discuss what are the levels of management which will be taking the strategic decisions. We need to understand from functional point of view. We need to understand from organization point of view. That is more important. And third, very important element, we'll be discussing how this strategy is different and strategic management is different, which I have explained to you yesterday, but precisely from module point of view, and how the management works into picture. मतलब मैनेजमेंट ये वर्ड क्या होता है और स्ट्रैटेजी ये वर्ड क्या होता है ये तो समझेंगे, एंड इसके साथ ये एसएम के कंटेक्स्ट में डिफरेंट कैसे है, इसका एजेंडा आज का रहेगा अपना। एंड उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में कितने चैप्टर्स है और चैप्टर्स के कौन से पॉइंट है, कितने मार्क्स के लिए कौन सा चैप्टर आता है. Precisely, I hope you are already aware that we have, for this new syllabus, we have only 2 attempts gone. Okay, not multiple attempts. One was May 24 and second is September 24. Before that was also strategic management, but the syllabus was not same. Syllabus was dramatically changed, the earlier one. So whenever I am using the previous RTPs in volume 3 or previous year's papers in volume 3 is compiler, if you remember, I have considered the amendment and accordingly modified the questions into it. So suppose you are checking out the RTPs in the ICIS BOS portal and you compare that RTP question with our volume 3 RTP, you may find some difference. Reason simple है, because of amendment in the syllabus. तो technically अपने 2 syllabus है और 2 attempt का ही syllabus हुआ है, 2 attempt ही हुए अपने लिए, तो much better pattern आना मुश्किल है. What does it mean? You can't get a best of best pattern here. Reason is simple, because we have only two attempts. So trend cannot be created very easily on the basis of 2 attempts. And both attempts are clearly fluctuating. Best example I can say you, in the first attempt, okay, the MCQ was not discussed with outside, if you are aware. But from September attempt, MCQ paper is disclosed. Okay, so we are aware in MCQ also कौन से chapter से question आए हुए हैं. But अगर मैं theory की बात करूँ, theory marks are how much? नहीं, I am discussing only for strategic management, not FM. 35. In 35, if we discuss on theory, okay, 35 marks की theory होती है, पर 35 marks के साथ में you get an optional question also. In that optional question, along with that optional question, you get 50 marks theory. So total how much marks theory question comes in examination? 50.
And out of 50, how much we need to attempt? 35. One question, 15, 15, 15. That's how the concept works. Okay, so this is how theory works. तो वो theory का concept कैसे होता है अगर आप देखोगे तो May 24 all chapters are equally. May 24 all chapter 10 mark 10 mark 10 mark 10 mark. कितने chapters है अपने पास? 5 चैप्टर में से every question मतलब हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया? 10 मार्क. तो अगर मे पैटर्न के बेसिस पे जावे तो ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. बट अगर मैं नवंबर ही आ रहा है अभी भी. ओके, सितंबर 24 अटेम्प्ट पे जाते हैं, द पेपर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली. एग्जांपल, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 वर फॉर 15 मार्क्स. ओके, 15 ईच. टोटल चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5, तो 15 मार्क के दोनों चैप्टर हो गए. तो कितने मार्क का हो गया टोटल? ये दोनों चैप्टर मिला के 30. और बाकी जो 20 मार्क है वो 1, 2 एंड 4 में डिवाइडेड था. तो टेक्निकली, बट एमसीक्यू का पैटर्न आ गया तो द थिंग्स हैव चेंज्ड. तो अगर आप देखोगे चैप्टर 1 में से एक टाइम पे खाली क्वेश्चन 5 मार्क का आया, थ्योरी क्वेश्चन, बट एमसीक्यू वाज देयर फॉर 2 मार्क्स, 4 मार्क का. तो इस तरह से वो पैटर्न देखोगे तो हर एक चैप्टर यू विल हैव फॉर हाउ मच मार्क्स? 10 मार्क. बट पैटर्न वाइज इंक्लूडिंग एमसीक्यू, थियरी वाइज तो अभी तक अपने पास बहुत ट्रेंड नहीं है, अपने पास बहुत पैटर्न नहीं है. आप बोलोगे सर आप आरटीपी ले सकते हो, एमटीपी ले सकते हो. सी, आरटीपी एंड एमटीपी आर द बेसिस फॉर क्वेश्चन बैंक, बट इट कैन नॉट बी ए कंक्लूडिंग पॉइंट हाउ द पैटर्न विल बी देयर. तो फॉर पैटर्न डिस्कशन वी कैन रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ फॉर ओनली हाउ मच अटेम्प्ट्स? 2 अटेम्प्ट्स. एंड थर्ड अटेम्प्ट विल बी देयर बिकॉज योर एग्जामिनेशन जब तक आएगा तो तीसरा अटेम्प्ट भी हो चुका होगा, अपनी बैच रहेगी तब तक हो चुका होगा. तो थर्ड अटेम्प्ट जिस दिन हो जाएगा, ऑलमोस्ट अपना बैच एंड के नजदीक में ही रहेगा, मतलब विल बी कंक्लूडिंग, तो उस टाइम पे अपन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे जो जैन में आ जाएगा. तो जैन का पेपर भी आ गया तो अपने को समझ में आ जाएगा भाई कैसा हो रहा है. तो पैटर्न विल बी मच मोर क्लियर व्हाट वी कैन एनालाइज इट आउट. ओके, तो टेक्निकली दोज हु आर अटेम्प्टिंग फॉर मे एग्जामिनेशन यू विल बी हैविंग टोटल 3 अटेम्प्ट्स का पैटर्न, एंड दोज हु आर अटेम्प्टिंग फॉर सितंबर यू विल बी हैविंग 4 अटेम्प्ट्स का पैटर्न. तो जितना ज्यादा पैटर्न बनेगा उतना क्लैरिटी बढ़ेगा. रीजन सिंपल है, उससे अपने को समझेगा भाई इंपॉर्टेंट ये है, नहीं ये नहीं है. बट इसका इंटरप्रिटेशन लॉजिक एकदम सिंपल रखो. वी नीड टू कंप्लीट द सिलेबस. और छोटा सिलेबस है तो क्या दिक्कत है यार, जब सिलेबस बड़ा होता है, वॉल्यूमनेस होता है, वी कैन कंक्लूड इट आउट. Okay, yesterday we have discussed some of the strategies which is on the screen right now. Okay, what are the 4 strategies we have discussed yesterday? Strategy I am discussing. What are the 4 strategies we have discussed yesterday? Market penetration, market development, product development and diversification. Once again, what are the 4 strategies? Market penetration, market development, product development and once last time. Okay, in market penetration what happens? Existing product, existing market. Okay, in market development, new market but the same product or existing product. In product development, same market and new product. Okay, new product is not a completely new product but a substantial changes in existing product. And last point is basically diversification, which will be having 2 things: new product itself and new markets itself. So technically if I discuss with you, yesterday I discussed one example. Okay, Pandar log, I hope you are I hope तनु जी, I am there with live student also. I am considering everyone buddy. तो एक बार स्टार्ट किया है तो अभी कंसेप्ट में क्या है, मतलब है लाइव में थोड़ा सा ये पॉइंट इंपैक्ट रहता है, ठीक है. Okay, nevertheless, coming back on the point, first of all the discussion comes like this. Suppose if you remember the example, we have discussed this example. Bournvita ad was there. The Bournvita ad was dedicated like this. It is for children. Okay, बच्चों के लिए Bournvita है. Okay, याद है ना, मेरा बेटा जब मुझे हराएगा मैं जीतूंगी. That was a concept for children. अचानक Bournvita ने ऐड किया, the same Bournvita can be used by pregnant mother. This concept of this strategy is what? They are developing a context what? They are developing a new market or new product? New market. Okay, product is same or different? Same. So technically this is concept called market development. I hope this point is very clear. This is called market development. I hope ये दिमाग में clear है, ठीक है. Suppose I am developing a sugar free product. Okay, sugar free product, and sugar free product I am developing for the children only. This is called concept children only. Diversification or product development? Diversification. Okay, नहीं मेरा पहला बोर्नविटा किसके लिए था? चिल्ड्रन के लिए था, चिल्ड्रन के लिए ही था. मैंने वही प्रोडक्ट बेचते वक्त बोला कि नाउ इट कैन बी यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय प्रेग्नेंट मदर्स. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मार्केट डेवलपमेंट. हाउ इट वाज ए मार्केट डेवलपमेंट? बिकॉज द प्रोडक्ट इज सेम बट थिंक अबाउट द मार्केट, इट इज अ न्यू मार्केट. नाउ कम टू द पॉइंट. वंस अगेन, बोर्नविटा का ऐड क्या था? यूज कंज्यूम्ड बाय होम?
बच्चे, चिल्ड्रंस, एवरीबडी क्लियर? Now I am telling this same children, I am developing one of the Bournvita where sugar will be less or sugar free will be there. So this is called the concept of product development or diversification. It's a product development. Why it is product development? Market is same. Market is same. Market is same. अब ये बोलोगे सर एक बच्चा जो पीता नहीं था वो पीने लग जाएगा, अरे doesn't matter, पर मेरा मार्केट में पहले वो इंक्लूडेड था ना. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट. व्हाट इज द मार्केट? जहां पर मैं पहले ऐड करता था, जिनको मैं पहले टारगेट करता था, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. मार्केट डजंट मीन यार सब्जी मंडी जैसा. मार्केट मीन्स हु वाज अ टारगेट कंज्यूमर फॉर मी, हु वाज अ टारगेट कस्टमर फॉर मी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. आई होप ये पॉइंट क्लियर है मार्केट का. ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई एम ट्विस्टिंग द थिंग्स. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क हियर. आई होप यू आर अवेयर अबाउट रूह अफ़ज़ा. रूह अफ़ज़ा सुना है कभी? रूह अफ़ज़ा is a rose concentrated one drink syrup which can be consumed in water also, in milk also or in curd also. लस्सी मल्टीपल हो सकता है. तो एक चीज सुनो, मेरा ऐड कैसा था? मेरा पहला ऐड था, सुनो हाँ एकदम अच्छे से. मेरा पहला ऐड था रूह अफ़ज़ा आप लीजिए, कंज्यूम विथ वाटर. मेहमान घर पे आए, कोई भी घर पे आइए, पानी में मिलाइए, 2 मिनट में मिल जाएगा और आप उनको सर्व कर सकते हैं एक कोल्ड ड्रिंक जैसा. ओके, ये एड प्रेजेंट थी आपके सामने. नाउ आई एम गोइंग विद अ न्यू एड वेयर आई एम सेइंग नाउ रूह अफ़ज़ा कैन बी कंज्यूम्ड. पहले नहीं करते थे, पहले एड का प्रमोशन आपको समझ में आ गया. नाउ रूह अफ़ज़ा कैन बी कंज्यूम्ड विद मिल्क ऑल्सो. नाउ द रूह अफ़ज़ा कैन बी कंज्यूम्ड विद मिल्क ऑल्सो. थिंक लॉजिकली नाउ हाउ दिस पॉइंट विल वर्क. यानी पहले मैंने प्रोडक्ट को ऐड कैसे किया? हाउ द प्रोडक्ट वाज प्रमोटेड? हाउ द प्रोडक्ट वाज प्रमोटेड? इट कैन बी कंज्यूम्ड विथ वाटर. ओके, अब नाउ मैं प्रोडक्ट कैसे बोल रहा हूं? इट कैन बी कंज्यूम्ड विथ मिल्क ऑल्सो. आई होप ये क्लियर है मालिक, एवरीबडी. तो मेरे को बताओ ये मिल्क का कंजम्पशन का एड जो मैंने दिया है, इसमें मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट, एम आई फोकसिंग ऑन अच्छा मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट, डाइवर्सिफिकेशन. अच्छा, हाउ मेनी आर सेइंग डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन तो होने का. डाइवर्सिफिकेशन एक जन बोल रहा है, मां कसम डाइवर्सिफिकेशन बोल रहा है. डाइवर्सिफिकेशन में अपने पास 2 चीज होनी जरूरी है. क्या 2 चीज है? न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट. मेरा पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट में चेंजेस है क्या? बात खत्म. तो अपना डाइवर्सिफिकेशन खत्म. तो मेरे को बताओ और एक चीज क्या खत्म हो जाएगी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. क्यों प्रोडक्ट डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा? नया प्रोडक्ट है ही नहीं. तो आई होप कट शॉट समझ में आया. तो अपने को फोकस करना है, क्या ये एग्जिस्टिंग मार्केट है या ये न्यू मार्केट है? प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग है. तो आप मेरे को बताओ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ वाले कॉम्बिनेशन में दो स्ट्रैटेजी. कौन सी 2 स्ट्रैटेजी? इट कैन बी मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट. ये दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी है? हमने सेइंग मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन फ्यू ऑफ देम. ओके, और बाकी बैलेंस आई एम एज्यूमिंग मार्केट डेवलपमेंट. इसके अलावा और कुछ 2 आ रहे होंगे तो भाई गलत है. तो मैंने आपको समझा दिया गलत कैसे हुआ वो. हाउ इट इज रॉन्ग? बिकॉज प्रोडक्ट देयर इज नो चेंज ओनली. जब तक प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा तब तक आप ये लास्ट 2 में जाओ ही मत ना मालिक, क्योंकि दोनों में मेन पॉइंट क्या है? न्यू प्रोडक्ट. तो जब तक न्यू प्रोडक्ट नहीं आएगा लास्ट 2 आएगा ही नहीं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो ऑनलाइन पढ़ लो, क्लियर है ये. तो अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कुछ ऑनलाइन में भी हो यार, मार्केट पेनिट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, मार्केट डेवलपमेंट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स और क्वेश्चन अराइज लाइक दिस, वेदर इट इज मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट. ओके, द आंसर इज मार्केट पेनिट्रेशन. इट इज नॉट ए मार्केट डेवलपमेंट. ओके, विल डिस्कस इट आउट, डोंट वरी. पर ये मार्केट पेनिट्रेशन है. आप देखो एक क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज कर सकता है. अब इसी का दूसरा एंगल लेता हूं. दूसरा एंगल सोचो समझो, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा. ओके, हमने रूह अफ़ज़ा की एड पहली बार जब रूह अफ़ज़ा लाया, हमने एड ऐसा किया रूह अफ़ज़ा कैन बी कंज्यूम्ड विथ मिल्क. हमने पहली बार ये ऐड किया, पहली बार ये ऐड ऐसा किया कि रूह अफ़ज़ा कैन बी कंज्यूम्ड विथ. पहला ऐड हमारा ऐसा था और हमारे टारगेट कस्टमर्स आ गए. ओके, तो मेरे को बताओ टारगेट कस्टमर कौन थे? सारे जन थे या दूध पीते थे? वो थे दूध पीते, और उनके साथ एक फ्लेवर आ गया कि रूह अफ़ज़ा ही ले सकते हैं. अब हमने नया ऐड किया एंड आई एम सेइंग रूह अफ़ज़ा कैन बी कंज्यूम्ड विथ वाटर ऑल्सो. ओके, अब ये स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? द रेड वाला पोर्शन स्ट्रैटेजी कौन सी होगी मालिक? रेड वाली स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट डेवलपमेंट? नाउ दिस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट. अब ये मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन का डिफरेंस कैसे समझ में आया? तो आई एम जस्ट मेकिंग यू, दिस इज ओनली मेकिंग द थिंग्स क्लियर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वर्क्स. तो फर्स्ट सिनारियो, व्हेन आई एम सेइंग वाटर, तो मेरे को बताओ ओके, अगर मेरे एक मार्केट में 100 पीपल्स है, 100 लोग है
ओके, हाउ मेनी पीपल विल बी ड्रिंकिंग वाटर? पक्का? तो टेक्निकली जो 100 लोग है, यानी मेरा क्वेश्चन है, मेरा पहला जो स्ट्रैटेजी है, पहले स्ट्रैटेजी में ओके मेरा रूह अफ़ज़ा का कंजम्पशन कितने लोग कर रहे हैं? 100 के 100। करे नहीं करे वो अलग चॉइस है, कोई कॉम्पिटिटर का कर रहा होगा व्हाटएवर, पर मेरा कंजम्पशन 100 के 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ मिल्क वही 100 लोगों में से कौन कौन पीता होगा? सारे के सारे या 50 पकड़ रहे हैं? सारे के सारे तो मिल्क नहीं पीते होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इसी मार्केट में 50 जन है, ओके 50 जन ऐसे, नया मार्केट कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसी मार्केट में 50 जन ऐसे, एज्यूम करो टोटल मार्केट कितने का है? 100 के बाहर जाओ ही मत। अब बोलोगे सर और 50 लोग हो गए, अरे पानी पीने वाले तो सब है ना, ऐसा कौन है जो पानी नहीं पिएगा? तो आप जो भी मार्केट की साइज बोलोगे पानी पी रहा होगा। तो एवरीबडी हु इज ड्रिंकिंग वाटर विल नॉट बी नेसेसरली ड्रिंकिंग मिल्क, बट इन दैट 50 पीपल विल बी लाइक दिस हु विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। तो अब मेरे को बताओ ये 50 लोग रूह अफ़ज़ा कब कब लेंगे? अभी नहीं, पानी के साथ भी ले सकते हैं और किसके साथ ले सकते हैं? तो क्या बढ़ रहा है? सेल बढ़ रहा, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो जैसे ही कंजम्पशन बढ़ा सेल बढ़ा, और सेल बढ़ा पेनिट्रेशन। यानी क्या यहां पर कोई नया मार्केट मिला? क्यों नहीं मिला नया मार्केट? एग्जिस्टिंग में से ही कुछ आएंगे ना। एग्जाम्पल, ओके भाई साहब आप लोग एसएम पढ़ रहे हो, भाई मैं एसएम पढ़ा रहा हूं, ओके ये लोग ही आए, तो क्या हुआ लॉजिक? मार्केट पेनिट्रेशन। एफएम पढ़ा मतलब एसएम का, एफएम में आया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गया, लेकिन वही एसएम का मैं बोल रहा हूं एसएम के कंटेक्स्ट में कुछ चैप्टर वाइज बता रहा हूं, तो इसी में से कुछ लोग पढ़ रहे हैं और एडिशनल लेक्चर बैठ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मार्केट पेनिट्रेशन। आई होप ये क्लियर है मालिक। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप शिफ्ट करोगे, दूसरे एग्जाम्पल में आपको मालूम पड़ेगा दूध पीने वाले लोग 100 का मार्केट था, क्या सबके सब दूध पी रहे थे? तो मेरे को बताओ जब पहली बार ऐड किया तो कितने जन? 50। तो बात खत्म, दिस इज योर मिल्क कंजम्पशन। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा मार्केट कितना था पहले? 50 का था, उससे ज्यादा था क्या? तो मेरा रूह अफ़ज़ा का सेल किसको हो रहा था? 50 को हो रहा था। आई होप ये क्लियर है। तो माय क्वेश्चन, ओके डोंट यू थिंक जो बचे हुए 50 और भी ऐड हो सकते जब मैं वाटर बोलूंगा? ओके क्या ये 50 भी वाटर पी सकते हैं? ओके देखो, अगर ये के साथ में कोई नए लोग भी जुड़ रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? नया मार्केट। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड विच डेवलपमेंट? मार्केट डेवलपमेंट। तो आपको इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ेगा मार्केट को डिसाइड करने के लिए। तो मार्केट डिसाइड करने के लिए आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, वेदर इट इज मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट। इट कैन बी मार्केट पेनिट्रेशन ऑल्सो, इट कैन बी मार्केट डेवलपमेंट ऑल्सो, बट नीड टू थिंक इज हाउस। ओके अच्छा, मैं पहली ऐड क्या हुई है वो बताता ही नहीं हूं, मैं बताता ही नहीं हूं पहली ऐड की हुई है। अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा? यू कैन टेक रूह अफ़ज़ा विथ मिल्क ऑल्सो। ऑल्सो बोला मतलब सेकेंड ऐड चल रही है, तो इसका मतलब व्हाट इज एन इंटरप्रिटेशन नाउ? इट इज अ मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट? पेनिट्रेशन, टेक्निकली पेनिट्रेशन। You can take रूह अफ़ज़ा with milk, you can take रूह अफ़ज़ा with water also. Market development. Just need to understand with this concept everybody. I hope everybody clear. So technically, okay, you need to understand what you discussed yesterday was a base, but you will require multiple examples to be going through. Then only you will be getting a much more clarity on this concept. This will not be a clarity. मतलब आप बोलोगे भाई साहब मेरे को तो तोड़ समझ गया, अब मैं सर फाइनल है, I can do anything about this. ऐसा नहीं होएगा. Okay, multiple permutation combination, multiple discussions will make you more clear with the concept. So technically these were the 4 strategy we discussed, but these are the only 4 strategy. अपने syllabus में ऐसा नहीं है. This is one of the part of the strategy. Now the question comes, sir, who takes the strategic decisions? So usually how many levels of management are there? 3 management. What are the name of 3 management? Top management, middle management, lower management. I hope everybody is aware about this. But in SM, we will never discuss about top, middle, lower. Then what are the 3 things we will be discussing? So please make the things very clear. Take your time, understand the concept. Any doubt, ask me. Because again, this is a part of chapter 1, this is a part in chapter 5, this is a part in chapter 4, this is a part in chapter 3, except chapter 2. तो chapter 2 छोड़ दिया, बाकी सारे chapters में ये concept जो मैं discuss कर रहा हूँ, it will be there. So there are always the 3 levels of management. Sir, what are the 3 levels of management? Come out of the mind of top, middle, lower. Don't link this top, middle, lower with this concept. Okay, concept is different. Top, middle, lower को मैं link करके दूंगा आपको. Don't worry. Top, middle, lower को मैं link करके दूंगा. But आप इसमें merge मत करो. Okay, so first of all, okay, here there will be 3 levels of management. One will be called as corporate level management. क्या बोला जाएगा? Corporate. क्या बोला मैंने वापस? Corporate level management. Corporate level management. Once again. क्या नाम दिया? Corporate level management. Second management will be business level management. Which management? Business level. And third will be functional level management. Which management?
फंक्शनल लेवल। तो 3 मैनेजमेंट के नाम मेरे को चाहिए। व्हाट आर द 3 मैनेजमेंट? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। वंस अगेन, ओके, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। पंडर लोग, एवरीबॉडी क्लियर? तो अब ये 3 मैनेजमेंट पहले याद रख लो। आप कौन से वर्ड उड़ा रहे हो? विच वर्ड यू आर स्किपिंग इट आउट? टॉप, मिडल, लोअर, एंड दिस कैन बी रिप्लेस्ड इन योर माइंडसेट विथ कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाटा ग्रुप। ओके, रतन जी टाटा, वी हैव लॉस्ट द जेम, ओके, जेम ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल एलिमेंट, लेकिन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टाटा ग्रुप। तो राइट नाउ व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट टाटा ग्रुप, ओके, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, एज्यूम करो ये है टाटा ग्रुप, एंड इफ आर अवेयर टाटा ग्रुप के चेयरमैन एंड अदर एलिमेंट्स वर टेकन केयर बाय रतन जी टाटा। नाउ टाटा ग्रुप इट इज एज ए ग्रुप, but Tata Group is further divided into multiple companies. Okay, any examples of some companies? Tata Motors, one of the best company. Okay, TCS, one of the other company. Tata Power is one more company. Okay, जो original जिससे टाटा चालू हुआ है, Tata Steel. Wow, we are forgetting Tata Steel. Okay, don't you think Tata Consumer Products are also there? Okay, Tata Consumer. Okay, Tata Consumer, and one more can be there, that is called Tata Insurance. और एक लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। I am just taking few of the examples. तो अगर आप हायरार्की देखोगे तो there is a Tata Group. In Tata Group there are few of the companies. Okay, so few of the companies में we have take how many companies? 6 कंपनी में आप देखोगे, पहला लिया टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर। नाउ टेक्निकली गोइंग फर्दर डाउन, तो टेकिंग वन एग्जांपल, वन टाटा मोटर्स। नाउ माय क्वेश्चन, ओके, टाटा मोटर्स एक अगर कंपनी दिखते हैं, टाटा ग्रुप इज अ ग्रुप, इट इज नॉट ए कंपनी। टाटा ग्रुप इज ए ग्रुप, इट इज नॉट ए कंपनी, बट इन टाटा ग्रुप देयर आर फर्दर कंपनीज और देयर आर फर्दर डिविजन्स। तो फर्स्ट डिवीजन विच वी आर डिस्कसिंग इज टाटा मोटर्स। तो कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? टाटा मोटर्स में कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे? डिपार्टमेंट्स okay, R&D, okay, we should not forget R&D because R&D is very much required for innovation for motors. So R&D will be there. More departments. Marketing, okay, can I deal as sales and marketing? Everybody, अरे हाँ या ना? Sales and marketing, everybody. Tata Elxsi, I mark some shareholder है. Okay, Tata Elxsi, IT. Tata Elxsi is basically technology based company of Tata, which is having a very high boom as such. तो जबरदस्त वाला पॉइंट है, ठीक है, पर अपने को ये पॉइंट आ गया। तो सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। सेल्स एंड मार्केटिंग बाद और डिपार्टमेंट? फाइनेंस, यस सर, हाउ विल फॉरगेट आवरसेल्फ? ओके, डोंट फॉरगेट, नो प्रॉब्लम। फाइनेंस के बाद और? अरे तुम लोग तो एक मेन डिपार्टमेंट बंद कर रहे हो यार, जिसकी वजह से वो बनने वाला है, प्रोडक्शन। अबे R&D के बाद तो क्या करना जरूरी है? प्रोडक्शन। ओके, हु विल डू ऑल दिस थिंग्स? कोई HR नहीं करेगा, लेकिन HR एम्प्लॉय अपॉइंट करेगा। ओके, तो भाई साहब, डू वी रिक्वायर एन HR डिपार्टमेंट ऑल्सो? तो आई होप आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या आप सभी लोग एग्री करते हैं इसी तरह से स्ट्रक्चर अगले जगह भी बन सकता है? पक्का? मैं बना नहीं रहा हूं, लॉजिक सिंपल है। ओके, इसकी जगह कम है बे, ओके, लेकिन लॉजिक सिंपल है। आई होप ये स्ट्रक्चर एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या यहां पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा होगा जो सारे डिसीजन लेगा? ओके, मेरे को बताओ, ये पर्सन जो रेड में लिखा है, ये डिसीजन किसके लिए लेगा? कोई एग्जांपल, ग्रुप के लिए कौन सा डिसीजन ले सकता है? वो ग्रुप के लिए लेगा। आई एग्री, एवरीबॉडी एग्री ऑन द सेम लाइन? ही विल टेक अ डिसीजन फॉर ग्रुप। विल ही टेक डिसीजन ओनली फॉर मोटर्स? विल ही टेक डिसीजन ओनली फॉर स्टील? नहीं भाई, ग्रुप के लिए लेगा मालिक। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो बताइए मालिक ग्रुप के लिए क्या डिसीजन ले सकता है? एनी डिसीजन। ऑनलाइन पढ़ लोग आप भी बताइए, एनी डिसीजन, एनी ऑफ द डिसीजन। ओके, मैडम का एक आंसर है, जबरदस्त। ओके, कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको बंद करना इज ऑलरेडी टास्क है, लेकिन मैडम एकदम लास्ट में पहुंच गए, मतलब जीवन मरण के कहां पे मैडम सीधा चल रहे हैं। ओके, एग्जांपल, टाटा इंश्योरेंस इज मेकिंग कंप्लीट लॉस। टाटा इंश्योरेंस चल ही नहीं रहा है, तो मेरे को बताओ यहां पर कौन डिसाइड करेगा टाटा इंश्योरेंस बंद करना है? कौन डिसाइड? टाटा इंश्योरेंस वाला खुद डिसाइड करेगा, मैं बंद कर रहा हूं। कौन डिसाइड करेगा? टाटा ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टूड मालिक। तो अपन एक नाम देते हैं, CEO ऑफ द ग्रुप। क्या बोलते हैं? CEO ऑफ द ग्रुप। आई होप जेपा मालिक इधर तक,
ठीक है. ओके, नाउ माय क्वेश्चन, ये सीईओ ऑफ द ग्रुप हो गया. विल देयर बी वन मोर पर्सन हु विल बी देयर इन टाटा मोटर्स? ओके, एंड द सेम हायरार्की विल बी देयर आल्सो ए पर्सन. दिस इज कैन बी आल्सो कॉल्ड एज सीईओ. लेकिन दिस विल बी सीईओ ऑफ ग्रुप और सीईओ ऑफ कंपनी. कंपनी. तो मेरे को बताओ ये दो सीईओ में डिफरेंस क्या होगा? ग्रुप है वो, तो मेरे को भी समझाओ ग्रुप का है. सीईओ ऑफ द ग्रुप और सीईओ ऑफ द कंपनी. डिसीजन. आई एम आस्किंग अबाउट डिसीजन. वो कंपनी के लिए डिसीजन लेगा और ये किसके लिए डिसीजन लेगा? अच्छा चलो एक नाम दे देते हैं. इधर है मिस्टर ए, इधर है मिस्टर बी. तो मेरा क्वेश्चन है मिस्टर ए काय के लिए डिसीजन लेगा? ओके, ये क्लियर है. मिस्टर ए का अपने डिस्कस किया ना. एग्जांपल, उसको बंद करना है. किसको बंद करना है? इंश्योरेंस. अच्छा चलो एक नया बिजनेस आया. ओके, नया बिजनेस मॉडल बन रहा है. एक एनवायरमेंट के लिए प्रोडक्ट्स बनाना, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट बनाना. चलो एक कंपनी चालू करते हैं जिसमें अपन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे? एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. एंड इसीलिए मेरे को और एक कंपनी खोलनी है. कौन डिसाइड करेगा? मिस्टर ए या मिस्टर बी? पक्का. तो मिस्टर ए का डिसीजन क्या होगा? नई कंपनी चालू करना, नया बिजनेस चालू करना. ओके, कोई बिजनेस को बंद करना. अच्छा, वाइंड अप करना इज द ओनली ऑप्शन? एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कर सकते डिसाइड. टाटा इंश्योरेंस, ओके लॉस मेकिंग है ना, एक काम करते हैं. क्यों लॉस मेकिंग हुआ? व्हाई इट इज लॉस मेकिंग? व्हाट कैन बी द रीजन? सेल्स नहीं हो रहा होगा. इंश्योरेंस बेचना वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है भाई. दुनिया में सब बेच सकते हैं, लेकिन इमेजिन करो इंश्योरेंस बेचना. इंश्योरेंस बेचना इज बिगेस्ट चैलेंज. और इंश्योरेंस में दिक्कत भी क्या आती है मालिक मालूम है क्या? ओके, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज टू सेल द इंश्योरेंस वी आर सेलिंग टू द पर्सन हु विल नॉट बी गेटिंग ए मनी. मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो तो सबसे वर्स्ट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वाला मुझे आके बोलेगा सर आप हमें पैसे दो, हम आपके मरने के बाद पैसे देंगे. मतलब हम इमेजिन करो, आई एम पेइंग द मनी, जो मुझे कब पेमेंट करने वाला है? मतलब अगले जन्म में मैं देखेगा. हाँ भाई हाँ. बट दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. ओके, हाँ, पर वो उनके एड वैड अगर इमोशंस देखे जीवन के साथ भी बाद भी, तो कंटेक्स्ट ठीक है. बट कमिंग ऑन द पॉइंट, ओके, इंश्योरेंस का सेल नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम हो रही होगी. तो देखो टाटा ग्रुप वाले किसने दिमाग लगाया होगा ये बताओ मेरे को. एक ऐसा सोचा मैंने. ओके, जो भी टाटा मोटर्स बिक्री होगी, टाटा मोटर्स मालूम है ना, टाटा मोटर्स का सेल अच्छा है. टाटा मोटर्स का सेल, नेक्सॉन अच्छी बिक्री है, दूसरी बिक्री है. हमने क्या सोचा, नेक्सॉन के साथ हमारे टाटा इंश्योरेंस लेना कंपलसरी. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. नेक्सॉन के साथ टाटा इंश्योरेंस विल बी कंपलसरी. दिस इज अ पॉलिसी विच वी हैव ब्रॉट. Now you tell me, okay, you tell me who will decide this? Mr. A or Mr. B? Pakka. Mr. A will decide this. So technically, which business should bring in, which business should be shut down, which business should be associated or clubbed with other business will be taken care by Mr. A. Everybody clear? Yes. So my question, what decision Mr. B takes? एक्सपांशन वर्ड अभी हाल फिलहाल यूज नहीं करेंगे अपन वो वर्ड मैं सब देता हूं, लेकिन टेक्निकली मेरे को बताओ मिस्टर बी कैसे अपॉइंट करेगा? मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर ए का डिसीजन परफेक्ट. ओके, मिस्टर बी क्या डिसीजन लेगा? हाँ, एग्जांपल मिस्टर बी क्या डिसीजन लेगा? थोड़ा बताओ ना मेरे को. इंडिविजुअली न्यू कार लॉन्च करना विल बी टेकन केयर बाय मिस्टर बी. एक आंसर आया, न्यू कार लॉन्च करना मिस्टर बी डिसाइड करेगा. और कोई कार का प्रोडक्शन बंद करना विल बी डिसाइडेड बाय मिस्टर बी. कार का प्रोडक्शन बंद करना इज डिसाइडेड बाय मिस्टर बी. ओके, बस कार का प्रोडक्शन चालू करना बंद करना, बस ये चालू बंद करना. सेल्स बढ़ाना मिस्टर बी करेगा, सेल्स बढ़ाना. मिस्टर ए का डिसीजन इंप्लीमेंट करना कौन करेगा? मिस्टर बी. देखो मल्टीपल आंसर आ रहे हैं. फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा मेरे को बताओ, और 2-3% डाल देते हैं. ओके, इधर डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं. ये इधर भी तो लोग होंगे ना, इधर भी हेड होगा. अब मेरे को बताओ, इधर जो बंदा है, ओके, इसको अपन लेते हैं XYZPQ. मैंने अपने नाम ले लिए, कॉमन नाम है. अब मेरे को बताओ HR का बंदा कौन है? Q. अब ये कौन है? HR का एम्प्लॉय है, HR का हेड है? हाँ, आई होप ये समझा. अपन हेड तक बात करें. इनके नीचे 1760 लोग काम करेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस हायरार्की. And this hierarchy, once you understood conceptually, we can link it very clearly. First of all, tell me who will take the decision for finance? Pakka? Then how somebody told यार Mr. B लेगा? Mr. B क्या लेगा? फिर क्वेश्चन वही आ रहा है. अच्छा, अभी एक एग्जांपल है. R&D. मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो व्हाट आई रिक्वायर्ड? विदाउट R&D वी कैन लॉन्च ए प्रोडक्ट. हु विल डू R&D का डिसीजन?
ओके, हु विल डू द आर&डी का डिसीजन? मिस्टर बी लेगा या एक्स लेगा? पक्का एक्स लेगा ना? कंसल्ट करेगा। तो फिर तो मेरे को लग रहा है फिर तो सब कंसल्ट ही करेंगे। टेक्निकली मेरा डिसीजन मेकिंग पे आ रहा है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग, हु विल डू द डिसीजन मेकिंग फॉर आर&डी? एक्स और बी? पक्का? ओके, हु विल टेक द डिसीजन फॉर सेल्स? वाई? बट फिर बी कर क्या रहे हैं? ओके, ही इज प्लेइंग ओनली गोटिया। ओके, मिस्टर बी इज डूइंग नथिंग, टारगेट टू देम। तो मतलब सेल्स कितना करना है वो मिस्टर बी बताएगा? उनके डिसीजंस। अच्छा चलो, एक इजी आंसर आपके लिए, सेल्स कितना करना है कौन बताएगा? चलो एक आंसर दो, ऑनलाइन पढ़ो लोग, तुम दूसरा और कुछ मत दो मेरे को। सेल्स कितना करना है वो बताओ मेरे को, ये कौन बताएगा? मिस्टर बी बताएगा या वाई बताएगा? बी बताएगा या वाई बताएगा? बी बताएगा। ऑलमोस्ट, मतलब सेल्स कितना करना है बी बताएगा। पक्का? ओके, तो फिर ए क्या करेगा? फिर अभी अब बी पे तुम लेके गए तो मैं तो ए को पूछ रहा हूं। अभी आप बोलोगे, ए बोलेगा ये धंधा चलाना है कि नहीं चलाना है? तो भाई ए तो बोल रहा है दिस नीड टू बी रनिंग आउट, तो ए कुछ भी नहीं करेगा। ए बोलेगा अच्छा टाटा मोटर, मिस्टर बी यू आर बेस्ट, यू डू एनीथिंग। ए ऐसा बोलेगा? और आपको लगता है ऐसे सीनियर लोग ऐसे ऐसे आगे नीचे? अच्छा, हायरार्की तो समझ में आ गई होगी एवरीबॉडी। व्हाट इज एन हायरार्की? हु इज एकदम सुपीरियर? ए। हु इज द सेकंड सुपीरियर? And who are the next superior? Again I am using the word superior. Okay, there will be multiple employees who will be working for? Okay, which superior? X, Y, Z, P, Q. I hope you are getting the point. Okay, तो टेक्निकली अब कुछ डिसीजंस के ऊपर अपन बात करते हैं। बहुत अच्छे से समझना, कस्टमर के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? ओके, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, लेकिन किसको मालूम रहेगा एग्जैक्टली कस्टमर क्या चाहता है? आप मेरे को बताओ, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे, ये कौन पता करके बताएगा? डू यू थिंक मिस्टर ए सिटिंग इन द एसी कैबिन, हुई टेकिंग अ डिसीजन ये चालू करना है ये बंद करना है, कैन टेक द डिसीजन व्हाट कंज्यूमर एग्जैक्टली रिक्वायर्स? बात खत्म। ओके, मिस्टर बी, ओके, जो डिसीजन देगा, डू यू थिंक मिस्टर बी विल बी टेकिंग अ डिसीजन एग्जैक्टली व्हाट कंज्यूमर रिक्वायर्ड? तो हु विल बी टेलिंग मी व्हाट एग्जैक्टली कंज्यूमर रिक्वायर्ड? एक्स। ओके, एक्स और वाई, बेसिकली वाई। तो टेक्निकली टेल मी where is a general manager concept comes and where the manager who is specialized in their area concept comes. Which are the general manager and which are the special manager? Special manager मतलब area manager. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरे को बताओ मिस्टर ए का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जनरल क्वालिफिकेशन। आई एम अहमदाबाद, ए जो समझ में आ रहा है वो एक कैटेगरी, अलग ही कैटेगरी। मिस्टर बी भी कौन बोला जाएगा? जनरल मैनेजर। ही इज नॉट एक्सपर्टाइज इन प्रोडक्शन। लेकिन मेरे को बताओ, ओके, इधर में से सीए किस में चाहिए? फाइनेंस। यानी भाई साहब जेड कौन होगा? जेड कौन होगा? सीए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो मेरे को बताओ इधर फिर आर&डी में कौन बंदा होगा? ओके, आर&डी वाला एक्सपर्टाइज, द पर्सन हु विल बी मोर इन इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड अदर एलिमेंट, कुछ तो होगा पर हेड होगा ना ये। ओके, तो टेल मी इन सेल्स एंड मार्केटिंग कौन बंदा होगा? एमबीए बट फॉर सेल्स। एमबीए फॉर सेल्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अच्छा, मेरे को बताओ एचआर के लिए एमबीए फॉर एचआर। उसी तरह अगर इधर लीगल होता तो सीएस और एडवोकेट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर हियर? जनरल क्वालिफिकेशन। तो ये एक्सपर्टाइज किस में चाहिए? प्रोडक्शन में इसको नॉलेज चाहिए, सेल्स में चाहिए, एचआर में चाहिए, या सब कुछ चाहिए? सब कुछ चाहिए। और इसको भी? तो मेरे को बताओ, पहले ऊपर वाले को नाम क्या दोगे, जनरल मैनेजर या स्पेशल मैनेजर? जनरल। दूसरा? तीसरा वाला? स्पेसिफिक। इनके स्पेसिफिक एरियाज है। तो मेरा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक एरियाज का डिसीजन कौन लेगा? ऑनलाइन पढ़ लोग, अच्छे से ध्यान देना। तो एक 5 मिनट में पूरा सेटअप कर रहा हूं। ओके, हु विल टेक ए स्पेसिफिक डिसीजंस? स्पेशल मैनेजर्स। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? हु विल टेक जनरलाइज्ड डिसीजंस? तो मेरा क्वेश्चन है, टारगेट्स कौन देगा? हु विल डिसाइड टारगेट्स? जनरल मैनेजर। गलत जा रहा है फिर भी, वापस। अच्छा, मेरे को बताओ सेल्स के लिए कौन बोलेगा कि सेल्स इतना तोड़ हो सकता है? अच्छा, मेरे को बताओ, क्या आपको लगता है वाई एक एक जन से जाके बात कर, एक एक घर पे जाके बेचेगा? वाई के नीचे एम्प्लॉइज है काम करने के लिए। मैं ये आप समझो, ये कौन है? मैनेजर्स, हेड। एग्जांपल अगर आप बोलोगे, इसको नाम क्या दिया अपने? सीईओ। ये सीईओ, दोनों सीईओ में डिफरेंस? ये सीईओ ग्रुप, ये सीईओ, यहां पर होगा वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट आर&डी। समझ में आया? और इनके नीचे होंगे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एम्प्लॉइज। तो
तो आप हायरार्की में समझो, वी आर ऑन विच लेवल? प्रीमियम लेवल, प्रीमियम। ओके जी, आप सब टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, मिडिल मैनेजमेंट तक की बात कर रहे हो, लोअर की डिस्कशन नहीं है ये। तो मेरा वापस क्वेश्चन आ रहा है, हु विल गिव द टारगेट्स? 100%। अच्छा, हु विल डिसाइड R&D? पक्का? एवरीबॉडी एग्री नाउ? पक्का? तो अब क्वेश्चन है, सीईओ क्या कर रहे हैं? तो मेरा पहला क्वेश्चन, अब आराम से समझिए, पहला क्वेश्चन, ओके, पहला मिस्टर ए है, व्हाट ही विल डू? कौन सा बिजनेस, कान खुले, कौन सा बिजनेस? वंस अगेन, व्हाट बिजनेस वी शुड बी, व्हाट बिजनेस वी शुड बी इज अ मेन डिसीजन टेकन बाय ए। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। तो हु इज ए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट? Mr. A. Corporate level management will decide on 4 things. Listen carefully. Listen carefully. What are the 4 things? First is basically focusing on whether we should go for expansion or not. Okay. Second, they can decide whether we should remain stable, not doing anything, only analyzing the environment. We are already aware we should analyze the environment continuously. So only analyzing environment, that is called stability. Third, लग गई है। ओके, तो क्या करना है? बंद करना है या वापस कुछ टर्न अराउंड करना है? दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। क्या बोलते हैं? रिट्रेंचमेंट। आराम से उसको क्या बोलते हैं? रिट्रेंचमेंट। तो 3 डिसीजन मेरे को अभी हाल फिलहाल बताओ, कौन से 3 डिसीजन है? अच्छा, सीक्वेंस चेंज कराओ, सीक्वेंस चेंज कराओ। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। वंस अगेन 3 वर्ड्स, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। वंस अगेन, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, स्टेबल। स्टेबल वर्ड सुना है ना आपने? स्टेबल करना, स्टेबल रहना मतलब जैसा है, ज्यादा हेडेक, सेल बढ़ाने की भी कोशिश मत करो ज्यादा। स्टेबल, पर स्टेबल कब करने देते? धंधा आज चालू किया और स्टेबल नहीं, स्टेबल कोई भी नहीं आया चलेगा, स्टेबल ऐसा नहीं रहता। जिस दिन अपन को एक मार्केट शेयर मिल गया, अपने को लगता है कि अभी इससे ज्यादा नहीं फोकस करना है, और पर इसको जाने नहीं देना है, देन हमारा अप्रोच कौन सा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसको क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट में है। लेकिन इसका मतलब ये डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं है। वी नीड टू एनालाइज एनवायरमेंट। विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट? 2। वी शुड ऑलवेज एनालाइज दिस 2 एनवायरमेंट। व्हाट आर 2 एनवायरमेंट? ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट। तो स्टेबिलिटी में क्या करते हैं? कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं सेल्स बढ़ाने का। ओके, अच्छा, स्टेबिलिटी में क्या मार्केट पेनिट्रेशन करेंगे? नहीं, अरे सेल बढ़ाना ही नहीं है ना। क्यों नहीं सेल बढ़ाना है? अरे ऑलरेडी मार्केट उसमें 100 जन थे, उसमें 70 जन मेरे पास है। आप बोलोगे सर और 30 जन जो बचे हुए हैं, पर वो 30 जन के लिए जो कॉस्ट जा रही है एक्वायर करने के लिए, वो शायद ज्यादा लग रही होगी। तो अपन सेटल्ड है, अपन किसमें खुश है? तो बट प्रॉब्लम है, अपने को ध्यान रखना है ये 70 कोई और लेके नहीं जावे। जो 30, जिसके पास 30 है वो भी तो कोशिश करेगा मेरा मार्केट लेने की। तो टोटल मार्केट में कितने जन है? 100 में से मेरे पास कितने? ओके, इसका मैंने खुश रहना चाहिए, लेकिन चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब मैंने क्या करना चाहिए? खाली एनालिसिस। विच एनालिसिस बेटा? विच एनालिसिस? एनवायरमेंट एनालिसिस। यानी एग्जांपल, कंप्यूटर क्या कर रहा है? ऐसा हो सकता है कंप्यूटर कुछ स्ट्रेटजी करे और ये 70 में से 20 लेके गया, तो मेरा तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा ना। ये नहीं होना चाहिए। बट बाकी और बढ़ाने के लिए आई विल बी नॉट डूइंग एनीथिंग। एग्जांपल, विल आई डू मार्केट पेनिट्रेशन? नो। मार्केट डेवलपमेंट? नो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट? नो। दीज आर स्टेबिलिटी। आई होप स्टेबिलिटी इज क्लियर मालिक। वापस बोल रहा हूं, बेस पूरा रेडी करो बस। अब बेस रेडी किए, 4 चैप्टर अपने तोड़ जाते। एक चैप्टर पूरा अलग ही है। 1 चैप्टर इज कंप्लीटली अबाउट ओके योर एनवायरमेंट एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस कौन सा करना है, बट 4 चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट यूज करते जाएगा मैं। सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो वंस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ओके, हेल्प मी आउट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर विल टेक 3 डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन विल बी स्टेबिलिटी। एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में व्हाट वी डू वी कैप्चर न्यू मार्केट? So what we do? We are stable with existing market. In stability, we'll be using which product? New product or existing product? Market will be existing, but we are not going with market penetration. याद रखना, market will be existing, product will be, but the only thing is we are not doing anything with respect to increasing sales, but we are analyzing. Why we are analyzing? Because some competitor may capture my data, my sales. I hope you are getting the point. तो स्टेबिलिटी कब करने का? अभी मेरे पास 10% मार्केट शेयर है, स्टेबिलिटी नहीं भाई। 10% कब गायब होगा मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन 70 को गायब करना इज ए चैलेंज। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, हु विल डिसाइड स्टेबिलिटी? मिस्टर ए और मिस्टर बी? ए डिसाइड करेगा। टाटा मोटर्स जो बिजनेस चल रहा है चुपचाप, नया कुछ नहीं करने का, चुपचाप, नो मार्केट पेनिट्रेशन, नो मार्केट डेवलपमेंट, फोकस ओनली ऑन स्टेबिलिटी, जस्ट फोकस एनवायरमेंट, महिंद्रा इज ब्रिंगिंग न्यू और नॉट. If Mahindra brought something new, then we'll discuss it out what should be done. I hope you are getting the point.
तो सेकेंड पॉइंट अब आता है, महिंद्रा नया गाड़ी लेके आ गया भाई, क्या तोड़ गाड़ी है। ओके, मां कसम अपन से मतलब निकल जाते हैं ड्राइवर सीट से बाहर, अपने आप गाड़ी पार्क हो जाती है। टाटा अभी चुप बैठेगा क्या? टाटा क्या करेगा? अब मेरे को बताओ किसको बोलेगा वो? R&D। पर वो R&D को डायरेक्टली बोलेगा क्या? किसके थ्रू जाएगा? मिस्टर बी। महिंद्रा ने देख क्या कर दिया। ओके, ऐसा कमाल हमको दिखना चाहिए, ऐसा कमाल हमको दिखना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? तो अब मेरे को बताओ, एक्सपांशन में 4 पॉइंट पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। 4 पॉइंट कौन से थे एक्सपांशन के? कल जो पढ़े, आज जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो मेरे को बताओ ये चारों से क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ रहा है या सेल्स कम हो रहा है? तो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? एक्सपांशन। इसको अपन बोलते हैं एक्सपांशन और ग्रोथ। एक्सपांशन और तो अब मेरे को बताओ, अगर टाटा मोटर्स ने एक्सपांशन बोला तो एक्सपांशन किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे एक्सपांशन करने? मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी को बोलेंगे तो एक्सपांशन में क्या ऐसे बोलेंगे? एक्सपांड कर, एक्सपांड कर। महिंद्रा ने निकाला एक्सपांड कर। महिंद्रा जैसी कार चाहिए अपने को। महिंद्रा जो निकाली टेक्नोलॉजी, अपने पास ईवी है। ईवी में एक्चुअली देखा जाए, हु इज हेड ऑफ होम? टाटा इज हेड ऑफ महिंद्रा। टाटा वाज फर्स्ट लॉन्चर फॉर इंडिया, टाटा वाज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेकिन महिंद्रा एग्जैक्ट सब कुछ लेके गया, क्योंकि महिंद्रा सुमड़ी में R&D कर रहा था। किसी को मालूम था महिंद्रा ऐसा कुछ लॉन्च करेगा? अपने को खाली बस मालूम है ईवी है, और अपने लिए ईवी मतलब ठीक है भाई ईवी है, अपन देख ही रहे ईवी है, स्कूटर भी आ रही ईवी है, आग लग जा रही है, ठीक है भाई ईवी है। लेकिन अचानक एक दिन महिंद्रा का एड लॉन्च होता है, महिंद्रा के सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं, इन्फ्लुएंसर सारे आते हैं, बोलते क्या निकाला है? टेस्ला को टक्कर। इमेजिन करो, टेस्ला को टक्कर दे रहा है। एंड इट्स अ ड्रामेटिक, मतलब कार के फीचर्स अगर आप देखोगे तो ड्रामेटिक है। अब टाटा क्या ऐसे ही बैठेगा? टाटा किसको बोलेगा? मिस्टर बी को बोलेगा, भाई व्हाट यू आर डूइंग? ओके, तू अपने काम धंधे पे लगा और इसको रिएक्ट कर। वी रिक्वायर समथिंग न्यू विच इज बेटर देन दिस, देन ओनली कस्टमर विल बी विथ मी, अदरवाइज कस्टमर विल शिफ्ट टू। तो अब मेरे को बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई इस कार में चेंजेस कर। क्या ईवी ऑलरेडी टाटा के पास था क्या? है या नहीं है? तो मेरे को बताओ उसमें चेंजेस करने बोल रहे हैं ना? कौन सा स्ट्रेटजी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, नहीं एक काम कर, ईवी से निकलते हैं। ईवी में महिंद्रा भी कैप्चर कर रहा है, ये भी कर रहा है। हाइड्रोजन पे कार बनाते हैं। हाइड्रोजन मतलब ना, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोलिक, वो हाइड्रोजन कुछ तो है, एक कुछ अलग से गैस पे कार, कार्बन डाइऑक्साइड पे कार बनाते कार। ओके, इधर आदमी ने सांस छोड़ी, उधर पेट्रोल का समझ में आ रहा है? यानी गाड़ी में बैठा आदमी, ओके वील बी यूजिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड। R&D अपन आप मैं हंस रहा है, शायद ओवर ए पीरियड ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पे बचेगा खाली कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स ऑल अबाउट R&D। देखो आपको ये मालूम होगा, इनोवेशन इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ लगी पड़ी। जब अपनी लगती है तब जाके क्या होता है? इनोवेशन। जब तक नहीं लगती है तब तक आदमी जिंदगी जीता है। ओके भाई साहब, ऑलमोस्ट 25 years बैक, 30 years बैक, पावर के प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स वर नॉट देयर। क्या देयर? लेकिन देवर ओके, क्योंकि वो कंजम्पशन ओके था। बट ओवर ए पीरियड अपने को समझ में आया, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एट द सेम टाइम फार्मा कंपनी इज वर्किंग, फार्मा कंपनी का R&D तोड़ काम कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ इट लाइफ एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग। बॉस इतना पॉपुलेशन अगर कंज्यूम करने लगा रिसोर्सेस, द थिंग्स विल बी वर्स्ट एंड थिंग्स चेंज एंड वी आर एंटर इनटू द एनवायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स। एग्जांपल राइट नाउ मेरे ख्याल से बहुत जन को मालूम होगा, पावर सेविंग कॉन्सेप्ट कौन सा है? पावर सेव करते हैं आपके कुछ घर पे होगा या बिल्डिंग में होगा, नियर अबाउट होगा। सोलार सुना होगा ना? सोलार एवरीबॉडी अवेयर? सोलार क्या है यार? सोलार इज एन आउटकम ऑफ दिस ओनली। सोलार पहले ही थोड़ना था, पहले चल रहा था, कोयले चल रहे थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कोयले खत्म होने वाले हैं, खुद गया है बहुत सारा। ओके, जब ये कुछ मतलब टेक्निकली दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स, बट नेवरदलेस नाउ टाटा विल डिस्कस दिस वन। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दिस कैन बी डाइवर्सिफिकेशन, व्हिच कैन बी एनी कॉन्सेप्ट, बट दिस इज द सेकंड स्ट्रेटजी। थर्ड स्ट्रेटजी इज लग गई है। टाटा इंश्योरेंस की लग गई थी ना, तो टाटा इंश्योरेंस को दो कॉन्सेप्ट समझा मैंने टाटा इंश्योरेंस के। व्हाट आर द टू कॉन्सेप्ट्स? Sir, but we don't know Mahindra first EV inventory in 23, but lack of market demand they didn't production. देखिए अभिनंदा, basically in 2013 if we discuss about the innovation, it is first mover advantage with respect to R&D and implementation. अच्छा मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी सोचना काफी है या इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है? कल क्या समझाया? कल के लेक्चर में ऑलमोस्ट अभी अपन 2 घंटे हो चुके हैं लेक्चर के टोटल। Okay, in last 2 hours, मतलब including yesterday का lecture, what we understood? Only strategy formulation is important. कि strategy implementation is required. तो महिंद्रा अगर सोच रहा है कि भाई things can be done like this, but most important is implementation. तो आप जब तक implementation किसने किया? टाटा। महिंद्रा गायब हो गया। Fair enough, okay.
ओके, तीसरा पॉइंट मेरे को बताओ, टाटा इंश्योरेंस में, आई होप दिस इज क्लियर अभिनंदन। ओके, अब मेरे को बताओ इनोवेशन में क्या, टाटा इंश्योरेंस का क्या समझाया था मैंने, दो एग्जांपल दिए थे टाटा इंश्योरेंस के। वन थिंग, टाटा इंश्योरेंस का सेल इज सेम और डिक्लाइनिंग, तो आई हैव टू ऑप्शंस, व्हाट आर द टू ऑप्शंस? फर्स्ट क्या बोला था मैंने? बंद करो, बंद करो था, एंड सेकंड? ओके, सेकंड क्या था? और एक टर्न अराउंड का एग्जांपल, मतलब क्या बताया था मैंने? और एक टाटा मोटर्स के साथ मर्ज करो, टाटा मोटर्स एक बेच रहा है, साथ में इंश्योरेंस भी बेचो। I hope you remember this. There are two concepts. One is turnaround. One is turnaround मतलब सेल्स की, देखो टाटा इंश्योरेंस का ग्राफ ऐसे हुआ रहेगा ना, टर्न अराउंड में हम कोशिश करेंगे वापस लाने की। टर्न अराउंड, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। टर्न अराउंड, ओके, टर्न अराउंड, और वी विल डाइवेस्ट और लिक्विडेट। What we'll do? Divest or liquidate. What is the meaning of divestment or liquidation? Divestment. टाटा इंश्योरेंस को बंद करेंगे, ओके, एंड अच्छा, बंद करने के बाद पैसा बचेगा ना, फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा ना, पैसा आएगा ना, ये पैसा हम डालेंगे टाटा मोटर्स में। दिस इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट। क्या बोलते हैं अपन? डाइवेस्टमेंट। ओके, टेक्निकली आई एम डूइंग टू कोर्सेस, वन इज सीए एंड वन इज सीएस। आई एम हैविंग लैक ऑफ टाइम, आई एम नॉट हैविंग ए कंप्लीट टाइम, आई एम नॉट एबल टू मैं दोनों के इसमें बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सीए आई एम डूइंग मच बेटर, बट सीएस आई एम नॉट एबल टू कंपीट मतलब आई एम नॉट एबल टू अप्लाई माई रिसोर्सेस, तो सीएस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, सीए बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, जो टाइम बचा हुआ है उसमें सीएस पढ़ रहा हूं, और टेक्निकली सीए में पास हो रहा हूं डिसेंटली, बट अच्छे से पास नहीं हो रहा हूं, पर सीएस में फेल ही हो रहा हूं। तो अब मेरे को बताओ, जो सीएस में टाइम डाल रहा हूं, एक काम करते हैं, सीएस को बंद करते हैं, और सीएस में जो 25 दिन डाल रहा हूं, वो 25 दिन किस में डालते हैं? क्या उसमें ग्रोथ हो सकता है? दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवेस्टमेंट। पर टर्न अराउंड में क्या होगा? टर्न अराउंड में क्या होगा? ओके, विल फोकस ओनली ऑन सीए और विल फोकस ऑन सीएस ऑल्सो। हम बोलेंगे सीएस में क्या पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हो, रेक्टिफाई करते हैं, एंड विल टर्न अराउंड एंड विल ट्राई टू रिकवर। ओके, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न अराउंड। तो व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट? टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट? ओके, टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट? पक्का? डिपेंड्स। अगर टर्न अराउंड करने के बाद अपने को लगता है मार्केट में कैपेबिलिटी बची है, वी कैन फोकस ऑन मार्केट, देन वी कैन डिस्कस अबाउट टर्न अराउंड। अगर अपने को लग रहा है भाई यार दूसरा बहुत बेहतर कर रहा है, दूसरा बहुत बेस्ट कर रहा है, रिसोर्स हटाते हैं और इधर डालते हैं। ओके, आई होप दिस कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवेस्टमेंट। तो मेरे को बताओ, डाइवेस्टमेंट और टर्न अराउंड के दिमाग में कब आना चाहिए? डाइवेस्टमेंट आएगा, टर्न अराउंड आएगा। क्वेश्चन में क्या होगा जिससे मुझे समझेगा नहीं, दोनों में लॉस है। डाइवेस्टमेंट भी करना है तो लॉस है, टर्न अराउंड भी करना है तो। अच्छा, टाटा इंश्योरेंस क्या कर रही है? टाटा इंश्योरेंस लॉस या प्रॉफिट? अच्छा, प्रॉफिट होता तो ग्रोथ होता, प्रॉफिट होता तो स्टेबिलिटी होता, स्टेबिलिटी में स्टेबल प्रॉफिट होता, ग्रोथ में प्रॉफिट बढ़ते जाता। बट इन द लास्ट कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम डिस्कसिंग इन टाटा इंश्योरेंस, इज इट प्रॉफिटेबल और लॉस? तो माय क्वेश्चन, लॉस में आई हैव टू ऑप्शन, व्हाट आर द टू ऑप्शन? डाइवेस्टमेंट और रिट्रेंचमेंट। तो फर्स्ट थिंग, सॉरी, टर्न अराउंड, माय मिस्टेक, टर्न अराउंड। Now tell me, what should I do, turn around or divestment? I told you depends. So what is that depending factor? सामने वाला कॉम्पिटिटर कितना इंपैक्ट कर रहा है, या मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिनेरियो। एनी अदर? अच्छा, थोड़ा प्रिसाइजली जाता है अपन। ओके, व्हाट कैन बी रिटन इन क्वेश्चन जिससे मुझे समझे टर्न अराउंड लिखना है आंसर या डाइवेस्टमेंट लिखना है? स्कोप बचा है, ठीक है, स्कोप बचा है करके। अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मेरे को बताओ मैं इस आंसर पे कब आऊंगा, रिट्रेंचमेंट पे कब आऊंगा, मतलब मेरी ठुक गई है। ओके, इसका मालूम पड़ेगा रिट्रेंचमेंट पे आना है। रिट्रेंचमेंट मतलब टर्न अराउंड पे आना है या डाइवेस्टमेंट में आना है, कब मालूम पड़ेगा? एक्सपांशन और स्टेबिलिटी विल बी प्रॉफिटेबली। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं मेरा कैश फ्लो ठुक गया है, मेरा नेटवर्थ नहीं है, मेरे को रेवेन्यू बरोबर जनरेट नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या करना चाहिए? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में एक पहले नाम नहीं, पहला टर्न अराउंड। अब टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट में अगर मैं बोल रहा हूं मुझे वापस प्रॉफिटेबल बनाना है, टर्न अराउंड। मेरे को ये देखना है कि मेरे पास और एक यूनिट है जो प्रॉफिटेबल है, और ये यूनिट प्रॉफिटेबल लग नहीं रही है, डाइवेस्टमेंट। तो जब दो यूनिट का डिस्कशन आए और उसमें से बताया जाए कि वन यूनिट इज वेरी प्रॉफिटेबल एंड सेकंड यूनिट इज नॉट प्रॉफिटेबल, तो क्या करने का? डाइवेस्टमेंट। लेकिन मैंने बोला भाई एक ही धंधा है और मेरे को बस वापस प्रॉफिटेबल करना है, टर्न अराउंड। आई होप ये क्लियर समझा मालिक? लेकिन यार ओके, इसको टर्न अराउंड किया, नहीं हुआ सक्सेसफुल, डाइवेस्टमेंट किया, नहीं हुआ सक्सेसफुल, ये भी फ्लॉप, 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 सब टोटल फेलियर। हमने टर्न अराउंड भी ट्राई कर लिया, डाइवेस्टमेंट ट्राई कर लिया, जिसमें लॉस था उसको भी ट्राई कर लिया। इस केस में एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। क्या बता है? लिक्विडेशन और डाइवेस्टमेंट में क्या फर्क होता है?
मेरे को बताओ डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में समझा क्या क्या आंसर होगा? ओके, डाइवेस्टमेंट में एक बंद करके दूसरे को बढ़ाऊंगा, यानी टेक्निकली देयर आर टू स्ट्रेटेजी, वन इज डाइवेस्टमेंट एंड वन इज ग्रोथ। नहीं समझा? अच्छा, डाइवेस्टमेंट में क्या करने वाला था? इंश्योरेंस से पैसा निकल के किस में डाल रहा था? मोटर। अब मोटर में पैसा आया तो उसका क्या होता था? तो यानी याद रखना, डाइवेस्टमेंट में देयर आर ऑलवेज टू स्ट्रेटेजी इंटरलिंक्ड। व्हाट आर द टू स्ट्रेटेजी? One is divesting and along with divesting there is growth, but in liquidation completely stopping. Worst is divestment और liquidation. Liquidation, divestment के साथ ना stigma attached है। divestment के साथ ना, जैसे मैंने divestment बोला तो आपने क्या बोला? divestment turn around कौन सा अच्छा? आपने बोला turn around। divestment किधर किसने अच्छा बोला? Everybody told turn around, but मैं आपको बता रहा हूँ divestment is much better than turn around many times. Reason simple है, you can focus on your core products, कोर कॉम्पिटेंसी। यार मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दे सकते हो। और देखो कभी कभी क्या होगा, टाटा मोटर्स को बढ़ना है लेकिन पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो कौन लाके देगा? डाइवेस्टमेंट है। आई होप ये लॉजिक समझा क्या? हु विल टेक ऑल दिस डिसीजंस? ए। एवरीबॉडी क्लियर? तो अब मेरे को बताओ, इन ऑन द स्क्रीन, ओके, टाटा मोटर्स के लिए क्या डिसाइड करेगा ये? महिंद्रा का सिचुएशन आपको ऑलरेडी पता है, तो टाटा मोटर्स के लिए ए क्या बोलेगा, क्या करना है? डाइवेस्टमेंट। अरे मां कसम, अबे टाटा मोटर्स को डाइवेस्टमेंट कर रहे हो? टाटा मोटर्स को डाइवेस्ट कर रही हो भाई? तू मिस्टर ए पे मत जाना कभी, तू यार पी की बार में ही रहे। ओके, मिस्टर ए क्या करेगा बोलो? टाटा मोटर्स को क्या बोलेगा? ओके, एक्सपांशन करना। और एक्सपांशन में शायद आपको याद होगा कल का आंसर जो अपन ने पढ़ा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी देयर और डाइवर्सिफिकेशन कैन बी देयर। आई होप ये क्लियर है। टाटा इंश्योरेंस लॉस मेकिंग है, टाटा इंश्योरेंस लॉस मेकिंग है और दम नहीं, आगे दम नहीं है, डाइवेस्टमेंट। ठीक है। टाटा कंज्यूमर भी लॉस मेकिंग है लेकिन आगे फ्यूचर दिख रहा है। आई होप क्लियर है मालिक। अच्छा, टाटा स्टील जितना कमा रहे उतना मस्त है और पूरा मार्केट शेयर हमारे पास है, स्टेबिलिटी। ओके, टाटा पावर भी ऐसा ही है कि भाई यार मार्केट शेयर हमारे पास है, ओके, कोई ले नहीं रहा है। कौन सा स्ट्रेटजी? स्टेबिलिटी। अच्छा, टीसीएस में हमको इंडिया में काम कर रहे थे, अभी यूएस में भी जाना सोच रहे हैं, एक्सपांशन। एक्सपांशन में कौन सा? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट, वॉट एवर प्रोडक्ट्स वी आर गिविंग हियर विल बी गिविंग इन। तो अब मेरे को बताओ मिस्टर ने कितने डिसीजन लिए? इन जो स्ट्रेटजीज है, 3 स्ट्रेटजीज बताई थी मैंने, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में क्या? अच्छा, एक बार मेरे को एक नाम बता दो फटाफट, एक बार एकदम आराम से। स्टेबिलिटी में देयर इज नो फर्दर नेम। एक्सपांशन में मैंने 4 नाम सिखा दिए कल वाले, कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, और बनेगा, लेकिन लॉजिक क्लियर है ना? ओके, तीसरा रिट्रेंचमेंट, 3। पहला टर्न अराउंड, दूसरा डाइवेस्टमेंट, तीसरा सब बंद करो, लिक्विडेशन। तो रिट्रेंचमेंट में कितने हैं? 3। कौन से? एक बार डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहां पर मिस्टर ने कौन सा डिसीजन लिया? स्टेबिलिटी लिया, ग्रोथ लिया, क्या लिया? अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन लिया। क्या लिया? तो मेरे को बताओ मिस्टर ए के पास कितनी स्ट्रेटजी है? 4 नाम, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। कितनी स्ट्रेटजी है? 4। तो मेरे को बताओ, ओके, मिस्टर ए को नाम क्या दिया था अपन ने? फटाफट नाम आपने अपना सीईओ नहीं, अपना नाम, कॉर्पोरेट लेवल। हाउ मेनी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आर देयर? हाउ मेनी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आर देयर? आराम से 4 कौन सी? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। आई होप क्लियर है। अच्छा, स्टेबिलिटी में और कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग नहीं रखना। ओके, एक्सपांशन में 4 नाम, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। रिट्रेंचमेंट में कितने? 3 नाम, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट। चैप्टर 4 आपका ये है। चैप्टर 4 इज कंप्लीटली दिस। चैप्टर 4 में अपन यही देखेंगे और जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन में कौन सा डिसीजन कब लेना है वो बताया जाएगा चैप्टर 4 में और एडिशनली। तो आपका चैप्टर 4 का 80% कॉन्सेप्ट यही है। 80% सिलेबस खत्म नहीं हुआ भाई। आई होप यू आर क्लियर। तो अपने को चैप्टर 4 किसके बारे में, कौन सी स्ट्रेटजीज के बारे में? नाम, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। आई होप झेपा मालिक। ओके, अब आते हैं मिस्टर ए ने जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बोली होगी, ऑनलाइन पढ़ लो, क्लियर है ना मालिक सबको? ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब जो भी स्ट्रैटेजी मिस्टर ए ने बोली होगी, मेरे को मिस्टर ए को बाजू में रखने दो। मिस्टर बी क्या करेगा, क्या इंप्लीमेंट करेगा? अच्छा चलो, मार्केट पेनिट्रेशन बोला, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट किसने बोला होगा?
तो बी क्या करेगा अब? उसको इंप्लीमेंट करेगा, मतलब एग्जांपल दो ना, मतलब अभी समझाना पड़ेगा। आराम से लो, टाइम लो। तोड़ मालिक 2 मिनट लो, मतलब ये अच्छे से सोचो कुछ अब। अच्छा, क्वेश्चन सबको समझा ना? अच्छा, मिस्टर ने क्या बोला, क्या करने का अपने को? ओके अच्छा, एग्जांपल मेरे को, चलो एक एग्जांपल ही लेते डायरेक्टली। टाटा मोटर्स को क्या बोला मिस्टर ने? टाटा मोटर्स के मिस्टर बी को क्या बोला? एक्सपांशन। एक्सपांशन में क्या नाम दिया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, आइदर ऑफ इट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर विद दिस। सबको ऑनलाइन पढ़ा लोग, सबको समझ में आ रहा है? पक्का? तो अब मेरे को ये बताइए, अब मिस्टर बी क्या डिसाइड करेगा? R&D को वो बोलेगा कि तू अच्छे से कर, आपको ये लगता है? तो फिर मतलब मेरा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये तो खाली इंटरमीडिएट है, ऊपर से डेटा ले रहे, नीचे दे रहे, नीचे से ले रहे, ऊपर दे रहे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब आपको लग रहा है इतने के लिए इस बंदे, अच्छा आपको क्या लगता है ये सीईओ बंदा है कंपनी का, इसको पैकेज क्या रहेगा? अच्छा सीईओ है ना ये, एम्प्लॉय मतलब ये मतलब समझ में आ रहा है क्या तुमको? अच्छा ये बताओ, इसका पैकेज और इसका पैकेज किसका ज्यादा रहेगा? मिस्टर बी का या वाई का? पक्का ना? और आप बोल रहे हो वो कुछ नहीं करता, वो ऊपर से डेटा लेगा, नीचे देगा, थोड़ा सा एडिशनली आप समझ रहे हो? मतलब बहुत भारी डिसीजन है भाई उसका। और इस बंदे का नाम, दूसरा नाम बी नाम है, मेरे को भी मालूम है नाम, लेवल बिजनेस लेवल मैनेजर्स। अब सवाल आता है बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या करेंगे अभी? ओके हाँ, इन सबको लिंक करेगा। ओके इन सबको लिंक करेगा। ओके ठीक है, कुछ थोड़ा सा फॉर्मल आंसर देते हो मालिक? हेलो हेलो हेलो, यस बढ़िया, थोड़ा सा फॉर्मल कोई आंसर दो यार, 2-3 आंसर दो, मजा आएगा मेरे को भी। मैं बोल रहा हूं मेरा मोटिवेशन तुम लोग भाई, डिटर्मिनेशन टेंशन नहीं है, डिटर्मिनेशन अपन रोज काम करते हैं, रोज मराते हैं, जिंदगी चलती जाती है। ओके लेकिन मोटिवेशन होना चाहिए ना, मजा भी तो आना चाहिए। मजा आने के लिए भाई तुम जब बताओगे कुछ पॉइंट पे, फिर मेरे को मजा आएगा, फिर कुछ चीजें बैठेगी। यस मालिक, नहीं चल रहा? तेरा साथ अभी इधर तो चल रहा था, वो है इधर है। ठीक है आप बोलो, मैं रिपीट करता हूँ वापस, 1 मिनट करना पड़ेगा, नहीं तो वो वापस बोलेगा सर। बोलिए मालिक एक बार। ओके यानी आपका कहना है मिस्टर बी इन सबको लेके चलेगा एंड साथ में लेके चलेगा, मतलब इन शॉर्ट इन सबको गाइड करेगा। पर क्वेश्चन है गाइड क्या करेगा? क्वेश्चन वापस आ रहा है क्या करेगा? देखो आप जनरल मैनेजर है, जनरली मत बोलो, अभी अपन स्पेसिफिकली, मैं आपको ऊपर से मैं जब बोला मिस्टर ए क्या करेगा, अभी मोर स्पेसिफिकली आया ना, थोड़ा सा उसमें और लॉजिक लगाओ, आप क्या बोल रहा होगा, क्या करने बोल रहा होगा। अच्छा मेरे को बताओ, टाटा मोटर्स R&D को बोलेगा ना, ये हेड को कुछ बोलेगा, क्वेश्चन है क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? यस पंडित। अच्छा तो आपका कहना वापस वही है जो पंटर बोल रहे थे अपने, कि मिस्टर ए बोलेगा मिस्टर बी को अपने को ईवी में बहुत तोड़ करना है, और यहां पर ईवी सबको मिला के ईवी में तोड़ काम करेंगे और ईवी निकालेंगे, ऐसा? आप ये समझने की कोशिश करो, अगर अपन ने ईवी निकाली, आपको क्या लगता है आज टाटा मोटर्स ने, 1 मिनट, आज टाटा मोटर्स ने कुछ बोला, कल के कल ईवी आ जाएगी? टाइम लगेगा। अब थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, दिमाग लगाओ ना एवरीवन। अब सोचो ये दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपको लगता है जब तक ये R&D करके नया ईवी निकालेंगे जो महिंद्रा जैसा होगा, महिंद्रा क्या गोटा खेलेगा? आपको नहीं लगता महिंद्रा अगले वर्जन पे जाएगा? तो भाई मेरे को बताओ, टाटा मोटर्स वाला बंदा खाली उस विजन पे ही रखना चाहिए, यानी ईवी जो निकाली वही निकालना चाहिए, या उसके आगे वाला विजन दिखना चाहिए? तो क्वेश्चन वो है ना, उस कॉन्टेक्स्ट से सोचो आप। ओके एनालिसिस कर लिया, सपोज एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड हुआ, पर क्वेश्चन है इसका टारगेट मेरे को बताओ। अच्छा यस कुछ स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी डिसाइड करना ही है। देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई, वापस एक लाइन क्लियर कर देता हूं सारी जना, एवरीबडीज आत्मा, एवरीबडी सोल, प्लीज लिसन केयरफुली। फर्स्ट थिंग, स्ट्रैटेजी वी आर ऑलरेडी अवेयर। सेकेंड, दिस strategic decisions are taken at 3 level. What are the 3 level? Corporate level, business level, functional level. So my question is, who formulates strategy? Corporate level, business level, functional level, including this also, they are also formulating strategy. यानी आप पहले ये दिमाग में रख लो, ये सब के सब क्या करेंगे? स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हैं। पर क्वेश्चन अपना आ रहा है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे? जो अपना आज का एजेंडा है, जो मैंने आपको बताया कि वी आर डिस्कसिंग दैट वन, विच स्ट्रैटेजीज दे विल डिसाइड।
बिकॉज दिस इज द बेस, देन वी कैन स्टार्ट विद अवर कंसेप्ट यार. फिर अपन एक चैप्टर 1 बोलो, चैप्टर 4 बोलो, ओके, वो फ्लो से अपन चालू कर सकते हैं, फिर चैप्टर वाइज लॉजिक दिमाग में बिठा सकते हैं एंड तोड़ कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ओनली? बट क्वेश्चन इज विच स्ट्रेटेजिक डिसीजंस? ओके, एक ऑनलाइन आया, श्रुति बोलती है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन क्या करना है? मजाक कर रहे हो यार. अभी अगर ये आंसर तुम बोल रहे हो ना, मां कसम मार दलो मेरे को, जहर वाली खीर खाने का टाइम आ जाएगा मेरे को, वो उधर से कूद जाऊंगा मैं. अरे मतलब खिड़की से तू देख ही रहा है, मतलब कूद अभी, मतलब ऐसा. अरे वैसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं. मेरे को बताओ, हु विल डिसाइड मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट? पक्का ना मिस्टर ए? मिस्टर ए विच मैनेजर? कॉर्पोरेट लेवल. अब जो मैंने आपको सिखा दिया उससे बाहर आ जाओ ना, वो खत्म हो गया कहानी. वो ऑलरेडी किसने डिसाइड कर लिया? ए मतलब कॉर्पोरेट लेवल. तो बी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स बिटवीन, ओके, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है. अच्छा चलो और एक उल्टा एग्जांपल देता हूं, उल्टा एग्जांपल, उल्टा रिवर्स एग्जांपल, एक तो शायद और बेटर क्लैरिटी रहे आपके लिए. और एक रिवर्स एग्जांपल, महिंद्रा हैज डन समथिंग ब्लंडर. महिंद्रा ने बहुत तोड़ निकाल दिया, महिंद्रा ने बहुत भारी कर दिया. ओके, महिंद्रा ने बहुत भारी कर दिया काम. ओके, अब ये सोच रहे हैं हमारे पास वी कैन इंसर्ट और वी कैन गो विथ स्वच्छ R&D. ये R&D में इनको लगा कि ईवी मार्केट में दम नहीं है अभी. किसको लगा? टाटा को. टाटा मोटर्स में मिस्टर ए को लगा ईवी मार्केट में जाएंगे, दम नहीं है. इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है मालूम है ईवी का? इंफ्रास्ट्रक्चर. टू व्हीलर ईवी इज परफेक्ट. टू व्हीलर ईवी तो चल जा रही है सब लोग के पास, सबके पास जम जा रही है, चार्ज करना आसान है. फोर व्हीलर ईवी का वर्स्ट है. एंड ये मैं ऐसे किसी का सुन के नहीं बोल रहा हूं, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं. मैंने ऑलमोस्ट 1.5 years आई वर्क मतलब आई यूज द ईवी ऑफ टाटा नेक्सॉन. और मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्टिंग में मैं खुद मोटिवेटेड था. मैं ये बोला था मेरा भविष्य, मतलब मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बोलने नहीं चाहिए पापा तुमको चलाने नहीं आती है, तो अपने को ऑलरेडी चार्ज करना आना चाहिए. अभी तक लाइफ में क्या था? गाड़ी खड़ी कर दी, पेट्रोल वाला पेट्रोल भरता था, अपने को क्या पैसे देके निकल लो. इधर चार्ज वो कोई करता नहीं है भाई. वहां समझ में आ रहा है वो फॉरेन वाला कॉन्सेप्ट? अपने को चार्ज करना पड़ता है, उसमें वो ऐप के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, टेक्नो से भी है तो इसीलिए ओके है. पर प्रॉब्लम क्या थी? वन फाइन डे व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम नासिक टू पुणे, नासिक मेरे ससुराल में गया था कुछ कामवश. ओके, पड़ता रहता है, काम पड़ते रहता है, जाना आना पड़ता है. ओके, बेटी दी है तो जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती है. तो अब कुछ कारण बच गया आते वक्त. ओके, मी एंड माय डॉटर वर कमिंग. मैं ऋतिका आ रहे थे और आदि और मेरी वाइफ को उधर छोड़ दिया था. बाद में लेना आना था, ऐसा छोड़ दिया था, मतलब छोड़ नहीं दिया था भाई. पर आपको उधर लिटरली हम एक बीच में रुके, वो टोल के आगे एक होटल था, उधर रुके. उधर जाते वक्त भी उधर ही चार्ज की थी, आते वक्त भी उधर ही चार्ज किया, लगाया चार्ज के लिए. 10 मिनट हुआ रहेगा. ओके, आफ्टर दैट आई एम पुलिंग आउट चार्जर, निकल ही नहीं रहा है. हैंग हो गया. हैंग हो गया मतलब वो चार्ज हो नहीं रहा है और चार्जर निकल नहीं रहा है. समझ में नहीं आ रहा है करूं क्या. एक तो दोपहर की गर्मी, दूसरा परेशान हो रहा तो मैं करूं क्या इसका. फिर मैंने फोन किया टाटा के सेंटर को. वो बोला सर यूट्यूब पे वीडियो देखो ना कैसे निकालना है. अब समझ रहा हूं मतलब. फिर मेरे को समझ में बोला क्या चोमू जैसा बात कर रहा है भाई, इज दिस ए लॉजिक? मतलब अरे भाई मैं तेरे से कार लिया हूं यार, मेरे को सर्विस सपोर्ट दे. तो बोलता एक काम करता हूं सर, मैं ही आपको लिंक भेजता हूं, क्या करना है, सर्विस सपोर्ट. फिर उसने कोई तो यूट्यूब का वीडियो भेजा, और वो यूट्यूब का वीडियो इतना ब्लंडर, क्योंकि वो एक मेरी गाड़ी जो थी ईवी मैक्स उसके पहले वाले वर्जन का था. वो उसने बोला चार्जर के नीचे नीचे झुको टायर के उधर, और टायर के उधर कुछ क्लिप है वो निकालो. मैं लिटरली नीचे झुक रहा हूं क्योंकि कोई था नहीं मेरे पास बंडर, तो अब मैं ही झुक रहा हूं. मैं क्लिप ढूंढ रहा हूं, क्लिप ही नहीं दिख रही. मैं परेशान, मैं बोला क्लिप नहीं है. मैं बोला बनाना तो भूल नहीं गए. आई कॉल देम अप, मैं बोला भाई वो क्लिप मिसिंग है. बोले सर आपकी कौन सी गाड़ी है? मैं बोला ईवी. वो बोले ईवी मैक्स. तो बोला हाँ. बोले सर उसमें क्लिप नहीं होती है. तो सर फिर उसमें होता ही है. आप इमेजिन करो 15-20 मिनट का नरेशन ये, और उसके बाद भी ढूंढने में टाइम लग गया, और 1 घंटा हम उधर रुके रहे. और 1 घंटे के बाद मैं बोला ऐसा हो क्यों रहा है? वो हैंग हो जा रहा है, वो अपने आप हैंग हो जा रहा है. हैंग होने के बाद वो अंदर अटक ही रहा है. वो बोलता है जब गर्मी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो चार्जर है ना वो 15 मिनट में ना स्विच ऑफ हो जाते हैं गर्मी के टाइम पे, क्योंकि हीट है वो ब्लास्ट हो सकते हैं. एंड इसीलिए जब भी हीट में चार्ज करते हैं, जब भी गर्म रहेगा, टेम्परेचर गोज अबाउट 35, उस टाइम पे चार्जर का ऑटोमेटिक कनेक्शन डाउन हो जाता है. जब चार्ज करने को आता है तो 15 मिनट में चार्जर बंद हो जाएगा, फिर वापस आपको रिचार्ज करना पड़ेगा. तो आपको उधर ध्यान देना पड़ेगा. मैं बोला मां कसम. फिर उस दिन तो पहले मैंने सोचा मां कसम इसको बेच देंगे और हाई राइडर ले लेंगे. मेरे को एक वो ऐसे हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट था. फिर बाद में टॉलरेट किया, नहीं जाने दे, नहीं बेचते, अभी चला लेते, अपने को अडॉप्ट करना है. दिस इज लर्निंग मेथड.
फिर एक दिन मेरी वाइफ और बच्चों इधर आए थे, वो किधर तो दगड़ू शेड गए, उधर से वापस आ रहे थे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, मतलब वो बटन दबा रहे, स्टार्ट ही नहीं हो रही, 90% चार्जिंग था, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर बाद में जो गैरेज वाले उनको बुलाया, बोलते सर इसको तो हाथ ही नहीं लगा सकते हम, एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज का। एंड वो टाटा वाले को फोन लगाया, बोले सर कुछ नहीं हो सकता, आपको सीधा गैराज में भेजना पड़ेगा। तो कैसे तो टोइंग वोइंग वैन से गैराज में भेजा, और उसके बाद मालूम पड़ा उसका कुछ तो सर्किट है वो ही खराब हो गया है, तो वो चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस किया वगैरह वगैरह। पर उसके बाद मैंने निकाल दिया भूत। मैं बोला जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा होगा वो ईवी चलाएगा, मैं पीछे बैठेगा, पर मैं ईवी पे जाएगा नहीं। एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब एकदम ब्लंडर। तो अब ईवी का कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो गया, और ये फीडबैक गया टाटा जी के पास। ओके, मिस्टर ए को मालूम पड़ा, ऐसा फीडबैक आया, और मिस्टर ने बोला सच में, और सब फीडबैक ऐसे ही आ रहे हैं। तो मिस्टर ए ने बोला एक काम करते हैं, अभी इससे बाहर आते हैं, हम हाइब्रिड कौन सी निकालते हैं, हाइब्रिड, और हाइब्रिड में ना सबसे सस्ती कार निकालते हैं। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर, सबसे सस्ती कार कौन सी थी, नैनो, एमजी का नहीं, एमजी की छोटी कार है, सस्ती नहीं है, हाँ वो सस्ती नहीं, वो छोटी है, हाँ नहीं तो बोलेगा सस्ती कार तो एमजी की है सर, वो एक देखिए हमने कॉमेट मालूम है ना सर, वो मतलब चालू किधर होती बंद किधर होती मालूम नहीं पड़ता वो कॉन्टेक्स्ट मालूम है ना। तो अब उसके कंपैरिजन में तोड़ गाड़ी जो सबसे सस्ती थी कौन सी थी, नैनो। कितने की थी नैनो, 1 लाख की नहीं थी, वो प्रमोशन था 1 लाख, 3 लाख तक आती थी गाड़ी, और 2.5 से 3 लाख के बीच में गाड़ी आती थी, एंड दैट वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो 1 लाख तक नहीं थी, और कितना भी उन्होंने कम किया तो 2.5 के नीचे जाने दी थी। इन्होंने अभी ये सोचा क्योंकि अभी पार्ट्स वार्ट्स वॉल्यूम में आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, सबसे सस्ती कार निकालने। किसने बोला, ए, मतलब अपने कौन सा मैनेजर। अब मेरे को आप बताओ बिजनेस लेवल मैनेजर क्या करेगा, नीचे के जो उससे ही बात करेगा, पर वो नीचे से बात क्या करेगा। एक जन आया आंसर आरएनडी बोला, किसी ने एक लेते अभी बीच में किसी ने आरएनडी बोल दिया, इसलिए मेरे उत्साह बढ़ गया। आरएनडी में अगर कॉस्ट बढ़ा दिया आपने, गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं समझ रहे हो आप। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, आपको यह समझना पड़ेगा। तो इसमें आरएनडी करना है क्या, या करना है तो किस में करना है, दैट विल बी अगेन क्वेश्चन। यस मैडम, कुछ बोल रहे थे आप। कितने फंड्स अवेलेबल है, कितने फंड्स में अवेलेबल रहेगा। ओके ठीक है, मैं वो फंड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन मैं हटाऊंगा, क्योंकि फंड्स के लिए ना जब इसको बोला जाएगा, ओके थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना। अगर ये वाला बंदा बोलता है कि भाई अपने को ऐसी गाड़ी चाहिए, इनोवेशन करना, जो भी करना होगा, पैसा तो लगेगा ना, पैसा अलर्ट ये करेगा ऑलमोस्ट, ये फाइनेंस मैनेज करेगा। ये आप बोलोगे ये फाइनेंस किसके लिए मैनेज करेगा, ये फाइनेंस मैनेज करेगा, यार क्या हो गया, ये फाइनेंस मैनेज करेगा, प्रोडक्शन में कितना देना है, टोटल फाइनेंस इज डिपार्ट। टाटा मोटर्स को पैसा कितना मिलेगा कौन डिसाइड करेगा। ओके आप समझ रहे हो। और ये ए वाला बोलेगा इसको कितना देना है, इसको कितना देना है, ये कितना देना है, ये कितना देना है। तो फाइनेंस बजट को आप बजट का रिस्ट्रिक्शन हटा दो, बजट का रिस्ट्रिक्शन हटाओ। उसके अलावा आपको क्या लगता है सबसे सस्ती कार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी। हाँ कोई एक बंदा आया क्या, एक आंसर आ रहे थे, कॉस्ट कटिंग। पहला पॉइंट है कॉस्ट कटिंग, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्शन मेथड। अच्छा मेरे को बताओ सस्ता कब होता है कोई भी चीज। अच्छा चाहे सबसे सस्ता अक्रॉस वर्ल्ड में किसके पास मिलता है, किसके पास मिलता है, कौन सी कंट्री है जो अक्रॉस सबसे सस्ता। ऐसा क्यों चाइना के पास सबसे सस्ता मिलता है, सबसे सस्ता क्यों मिलता है चाइना के पास, बल्क में। डुप्लीकेट, ये देखिए आ गया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैन बी ए सेकंड कॉन्टेक्स्ट, डुप्लीकेट का नहीं बोलता, बल्क वॉल्यूम। अब जितना वॉल्यूम निकालोगे कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आई होप ये इकोनॉमिक्स में आपको मालूम था, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, प्रोडक्शन का क्वांटम बढ़ेगा। ओके क्या कम होते जाएगा, प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आया कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। ओके दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो मेरे को बताओ मिस्टर बी को सबसे पहले किसके साथ काम करना चाहिए, पहले काम करना चाहिए आरएनडी। लेकिन आरएनडी के साथ क्या काम करना चाहिए, हम कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स क्या कर सके। लेकिन कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स का लॉजिक ऐसा याद रखना, कॉस्ट कटिंग टेक्निक डजंट मीन ओके हम वाइपर नहीं देंगे सर, बरसात आई तो ऐसा बाहर निकल के ऐसा पहुंच चलेगा। सर एक काम करेंगे, गाड़ी बेचेंगे, टायर परचेज योर ओन वे। ओके एक काम करेंगे, गाड़ी देंगे स्टीयरिंग में। ओके ऐसा कुछ रहेगा क्या। कॉस्ट कटिंग मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट आई एम सेइंग इज कॉस्ट कटिंग मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बट हु विल थिंक अबाउट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आरएनडी। तो अब ये कौन ज्ञान छिपेगा कि भाई यार कॉस्ट पे फोकस कर। ओके बी, ओके अब बी देगा, आरएनडी को बोलेगा। फिर एट द सेम टाइम आरएनडी से डेटा आ गया, बी किसको बोलेगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बल्क में प्रोड्यूस कर। ओके मेक श्योर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कम हो।
लॉसेस कम हो, अच्छा प्रोडक्शन क्या ओ, एट द सेम टाइम सेल्स मार्केटिंग। आप इमेजिन करो, अब मेरे को कॉस्ट कम रखनी है, मार्केटिंग ज्यादा करो या कम? ज्यादा नहीं कर सकते मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग जितना बढ़ाया कॉस्ट बढ़ेगी। आपको एक बेसिक एग्जांपल कल का देता हूं। कल मैंने साबुन के एग्जांपल दिए थे। साबुन कितने में मिलते हैं? 10 रुपए से भी मिलता है, बड़ा एक एवरेज मीडियम साइज हो 25 30 रुपया, 50 रुपए तक भी जाता है, पर 25 30 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना मालूम है इसका? एनी आइडिया? 2 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो साबुन लगा रहा ना सुबह, बनता कितने में? वो 20 में बिकने का कारण है उसका मार्केटिंग। अबे रोज ऐड आती है, क्योंकि अगर ओके, इसीलिए उसको एफएमसीजी बोला जाता है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर एक दिन ऐड मिस हो गई, तेरे दिमाग में दूसरा ब्रांड आ जाएगा। ओके, वो 2 रुपए का ओके, जो 15 रुपए कॉस्ट बढ़ रही है उसकी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। तो आप इमेजिन करो कॉस्ट, तो कॉस्ट कम करना, मेरे को बताओ फिर मार्केटिंग को क्या बोलना पड़ेगा? कम। मार्केटिंग कम होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम रीच होनी चाहिए। तो वो ये समझ में आ रहा सबको? ओके, और फिर प्रोडक्शन के साथ, फाइनेंस के साथ वगैरह वगैरह ही मिलकर काम करेगा। इसीलिए मिस्टर बी दो एरियाज में काम करेगा। सुन लो मालिक, 2 एरियाज कौन सा? फर्स्ट एरिया कैन बी अ कॉस्ट लीडर। फर्स्ट एरिया कैन बी अ, वापस आइए, फर्स्ट एरिया कैन बी कॉस्ट लीडर एंड सेकेंड एरिया कैन बी डिफरेंशिएशन। सेकेंड एरिया कैन बी डिफरेंशिएशन। यानी मिस्टर बी क्या डिसाइड करता है कि हमको क्या बनना है। अगर मिस्टर ए ने बोल दिया हमें मार्केट शेयर तगड़ा चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, फिर मिस्टर बी एनालिसिस करेगा और डिसाइड करेगा ग्रोथ किस एरिया में करना चाहिए। Are we required to focus on cost leader? Do we need to become a cost leader or do we need to focus on differentiation? Example, अगर 1 लाख की कार है, 1.5 लाख की कार है, 2 लाख की कार है, मेरे को बताओ उसका सेल कितना होगा? कम होगा या वॉल्यूम ज्यादा होगा? ज्यादा हो गया। इसीलिए इसका नाम होता है कॉस्ट लीडर, सबसे सस्ता। क्या बोला मैंने? सबसे सस्ता। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन, वर्ड दिमाग में डालो, विच वर्ड? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, वापस बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब सबसे अलग। एग्जांपल, जैगुआर कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। बीएमडब्ल्यू डिफरेंशिएशन। तो जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन उतना प्राइस ज्यादा, उतना प्रॉफिट, लेकिन उतना सेल कम रहता। यानी अगर मैं बोलूं आपके पास अगर 100 का मार्केट, याद है ना सुबह से मैं डिस्कस कर रहा हूं, 100 का मार्केट, अपन एक ही एजम्पशन करेंगे, कितने का मार्केट? 100 में से मेरे को बताओ कॉस्ट लीडर के पास कितना होगा? जब मैं नाम बोल रहा हूं कॉस्ट लीडर, तो कितना होना चाहिए? 50 से ज्यादा। तो टेक्निकली अगर बात करें तो 50 से ज्यादा, यानी टेक्निकली अगर 100 में से 70 किसके पास है? अगर मैं बोल रहा हूं 70 ए मिस्टर ए लेके गया है, मिस्टर ए लेके गया है और वो सबसे सस्ता दे रहा है, इसका मतलब वो कौन बना? कॉस्ट लीडर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। और जो बचा हुआ 30 जन है सर, वो इधर उधर मुंह मार रहे हैं। ओके, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनको सबसे सस्ता नहीं चाहिए, उनको सबसे अलग चाहिए। और ये जो सबसे अलग चाहिए उसमें भी 30 में से कुछ अलग होते हैं। 30 में से 20 जन है जो BMW, जैगुआर, नाइकी शूज ओके जी हो जाएंगे। लेकिन एक बंदा बोल रहा है भाई ठीक है नाइकी शूज ओके, नाइकी शूज है, ये सब है ठीक है, ये सूट ओके, मेरे को इधर अमित तातड़ लिख के चाहिए ये सूट पे। तो अब मैं ना इसमें बैठा, समझ में आ रहा है ना? डिफरेंशिएशन जो जनरली सबको मिल रहा है। अरे शूज एकदम भारी है, नाइके के शूज, मेरे को नाइके पे अमित तातड़ लिख के चाहिए, तोड़ लिख के चाहिए, मंगा दो मैं। ओके, तोड़ लिख के आता है। ओके, तोड़। ओके, अब ये बनाता हूं। अब मेरे को बताओ ये कौन बनाता है? नाइके बनाता है। लेकिन नाइके कौन सा मार्केट टाइप कर रहा है? इसमें से भी और जो बचा हुआ रहेगा ना 5 का, उसके लिए उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? तो मिस्टर बी 3 चीजों पे ध्यान रखेंगे। कौन सी 3 चीजों पे? क्या हमें कॉस्ट लीडर बनना है, डिफरेंशिएशन, फोकस। तीनों कभी भी एक साथ में नहीं बन सकते। तीनों एक साथ में नहीं बन सकते, तीनों में से। तो अब मेरे को बताओ आपको क्या करना है, कैसे डिसाइड करें? अगर यहां पर मेरे को मालूम पड़ रहा है बायर है ना सबसे सस्ता प्रीफर कर रहे हैं, कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन कॉस्ट लीडर कब बन पाओगे? जब तुम्हारे पास सेल्स वॉल्यूम है। व्हाट इफ वॉल्यूम ही नहीं है? तो फिर आप दूसरे कैटेगरी में चले गए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। याद रखना, मार्केट 100 का नया मत बनाओ। मार्केट कितने का है? 100 में से बचाओ, मेजर किसके पास गया? 70 किसके पास गया? कॉस्ट लीडर। तो इसका मतलब वो सबसे सस्ता दे रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी है, 4 है, ए के पास 70% है, बी सी डी के पास कुछ अलग परसेंटेज है, ओके, और ए सबसे सस्ता दे रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ए कौन हुआ? कॉस्ट लीडर। बी सी डी कौन हुए? डिपेंड्स। अगर उसमें से बी और सी प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हैं और प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और डी क्या कर रहा है? कस्टमाइज करके दे रहा है,
एक एक जन से पूछ रहे तेरे को क्या चाहिए, तू बता, वैसे मैं बना के देता। तो ये जैसा चाहिए वैसा बना के देना इज कॉल्ड फोकस। कार के सेक्शन में कौन ऐसे बना के देता है? रोल्स रॉयस। अगर आपने देखी होगी, अभी विवेक ओबरॉय ने एक रोल्स रॉयस खरीदी 12 करोड़ की। ओके, 12 करोड़ की फुल कस्टमाइजेशन। और आपने को सबसे बड़ा आश्चर्यजनक यही हुआ, विवेक ओबरॉय 12 करोड़ नहीं, दूसरे हीरो ने खरीदा, सलमान खान ने खरीदा, ओ फेयर इनफ, इट्स ओके। ओके, संजू बाबा ने खरीदा, इट्स ओके। हमको मालूम है विवेक ओबरॉय जिसको हमने इंडस्ट्री से निकाल दिया था। आई होप यू आर अवेयर अबाउट विवेक ओबरॉय। सुना है कभी? विवेक ओबरॉय की फर्स्ट 3-4 मूवी तोड़ हिट हुई थी। तोड़ हिट मतलब तोड़ हिट हुई थी। ओके, उसकी साथिया तो एक नंबर थी, क्योंकि वो मेरे कॉलेज के टाइम का था, मेरे को याद है। साथिया करके एक नंबर। ओके, सुपर हिट। लेकिन फिर ऐश्वर्या राय का गेम, सलमान खान का गेम। ओके, यानी ये सब कहानी अभिषेक बच्चन की पहले थी। ओके, एंड इमेजिन करो ये सारे एरा में द थिंग्स वर वर्स फॉर विवेक ओबरॉय एंड अल्टीमेटली ही इज फ्रॉम आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। लेकिन उसने अपना बिजनेस मॉडल रखा, ही वाज हैविंग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्लान एंड बिजनेस। अदर देन दैट आल्सो उसका नेटवर्क जो है आपको, ओके, इट इज मच हायर देन आलू अर्जुन आल्सो। आलू अर्जुन, पुष्पा जो सबसे सुपर डुपर हिट में चल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट, ओके, मेक श्योर, ये पहला, इसकी स्ट्रेटजी का नाम बताओ। कॉर्पोरेट लेवल कौन सी स्ट्रेटजी करेगा? 4 नाम, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ओके, ये कौन सा मैनेजर? बिजनेस लेवल मैनेजर। ये कितनी स्ट्रेटजी करेगा? 3। या तो कॉस्ट लीडर बनेगा, या डिफरेंशियल बनेगा, या बचा हुआ मार्केट जिनको ये दोनों नहीं जम रहे, फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस है जिसको नहीं जम रहे। एवरीबॉडी क्लियर? एग्जांपल, एक क्लासेस के इसमें जो सबसे सस्ता दे रहा है और पूरा शेयर उसके पास है, कॉस्ट लीडर है। एक महंगा दे रहा है लेकिन बच्चे कम है, डिफरेंशिएशन। और एक प्राइवेट ट्यूशन बोलता है मेरे को प्राइवेट ट्यूशन ही चाहिए, फोकस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, जो इस मार्केट से हट गए। तो दैट इज योर पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है लास्ट पॉइंट, ये कौन, इनका नाम बता दो अभी। नाम आज सुबह स्टार्ट किया था ना, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? अब क्वेश्चन है फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट क्या करेंगे, इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी। ओके, अब मेरे को बताओ, आर&डी को इसने क्या बोला, क्या बनना है? सबसे सस्ता ना। आर&डी फिर क्या करेगा वो डिसाइड करेगा। अब मेरे को बताओ, आर&डी ने क्या करना चाहिए, इनोवेशन या इमिटेट? अच्छा, इमिटेशन मतलब कॉपी करना। तो अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को सबसे सस्ता बनाना है तो शुड आई फोकस ऑन इनोवेशन ऑफ न्यू थिंग्स और इमिटेटिंग द बेस्ट थिंग्स इन द इंडस्ट्री? समझ में आया? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हु विल डिसाइड वेदर वी शुड इमिटेट और वी शुड गो फॉर इनोवेशन? R&D. It will not be this. I hope you are getting the point. अच्छा, मार्केटिंग करने के लिए भाई साहब हम फेसबुक पे जाए या इंस्टाग्राम पे जाए, कहां पर मार्केटिंग करें? या टीवी पे करें या रेडियो पे करें? कहां पर करें? कौन डिसाइड करेगा? ओके, मार्केटिंग। समझ में आया? और शायद मार्केटिंग में आपने सुना होगा, ओके, 4 P's करके होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन के ऊपर कौन ध्यान देगा? क्या प्रमोशन के ऊपर मिस्टर बी ध्यान देगा? नहीं, कौन ध्यान देगा? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इनकी खुद की स्टडी होती है और फिर इनके एम्प्लॉय काम करते हैं। प्रोडक्शन, अगर मुझे सबसे सस्ता बनाना है तो वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत अलग बनाना है, वॉल्यूम या क्वालिटी, कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्शन। इनको बोला किसने ये करना है? बी ने। तो बी के पास टारगेट्स है, बी के पास विजन है अपना, आपको ये अलाइन करना है दिमाग में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन है? कॉर्पोरेट लेवल, एवरीबॉडी क्लियर? Chapter 4th is about this person, corporate level. Chapter 3 is about this person and more element, but this person कौन? ये अपना सिलेबस नहीं है, ये अपने सिलेबस में ही नहीं है। ओके, रीजन सिंपल है क्योंकि फंक्शनल लेवल का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस ही नहीं किया है। तो अपन कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? आर वी डिस्कसिंग ए स्पेसिफिक एरिया और जनरल मैनेजर पोजीशंस? ओके, हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव? 5. Chapter 1 is on, okay, you require विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, ये सब चैप्टर 1 बताएगा। तो चैप्टर 1 में अपन जो कल चालू करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, ये चैप्टर 1। चैप्टर 2 अच्छा, ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स 5 स्टेप्स पढ़े थे ना आपने? 5 में से कौन सा स्टेप है ये? फर्स्ट स्टेप है, एवरीबॉडी एग्री? सेकंड कौन सा था? नाम बताओ एनालिसिस के 2। ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। आई होप क्लियर है? सेकेंड इज अबाउट एनवायरमेंट एनालिसिस। सेकेंड किसका एनालिसिस है? एनवायरमेंट। थर्ड अपना नहीं, एनालिसिस कौन सा एनालिसिस? इंटरनल, यानी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस प्लस ये बंदा। तो चैप्टर 3 में 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे। कौन से 2 कॉन्सेप्ट? एक है एनालिसिस विच इज इंटरनल एनालिसिस एंड वन विल बी
ओके, बिजनेस लेवल स्टडीज। आई होप क्लियर है मालिक? अरे हाँ या ना? तो अपन चैप्टर 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। टोटल चैप्टर्स कितने अपने? 5, लेकिन अपन 6 करेंगे। तो 3 विल बी 3A इंटरनल एनालिसिस, 3B बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। तो चैप्टर 3 को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जिसको याद रखेंगे वैसे ही याद रखेंगे, रिवाइज भी वैसे ही करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन बैंक आल्सो विल बी क्लोजिंग लाइक दैट वे ओनली। तो 3 को आपने पूरा 3A के साथ में याद नहीं रखना है, 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 3A एनालिसिस, 3B बिजनेस। फोर्थ कौन सा है भाई साहब? अपना बाप कौन सा है? कॉर्पोरेट लेवल। आई होप जीपंग मालिक। एंड फिफ्थ जो सबसे अपना लोएस्ट है अपने सिलेबस में, सबसे कम दिया हुआ है, 5 स्टेप बताओ वापस एक बार। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। सेकंड एनालिसिस, दोनों हो गए चैप्टर। थर्ड भी तो चैप्टर हो गया ना। थर्ड कौन सा था? स्ट्रैटेजी। कौन सी वाली स्ट्रैटेजी? फॉर्मुलेटिंग। ये दोनों पढ़ ली ना अपन ने? ये वाली सिलेबस में नहीं है, बात खत्म। तो थर्ड भी हो गया। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज क्या है? इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग। इसके लिए सिर्फ एक ही चैप्टर है। तो अपना सिलेबस किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है? ओके, इज इट फोकसिंग ऑन फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन? फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, करेक्शन, एवरीथिंग इज इन ओनली वन चैप्टर। डेफिनेटली वो थोड़ा रिलेटिवली बड़ा चैप्टर है, लेकिन सब कुछ एक ही चैप्टर में है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक। तो व्हाट आर द 5 चैप्टर्स एज सच? फर्स्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेसिक्स, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे विजन, मिशन, गोल्स एंड। सेकंड एनालिसिस। थर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी। पर कौन सी स्ट्रैटेजी? कॉर्पोरेट। थर्ड में बिजनेस। फोर्थ में कौन सी स्ट्रैटेजी? कॉर्पोरेट। एंड फिफ्थ में इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? पक्का? मेरे को बताओ समझ में आया क्या? तो मैं अगर आपको लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं? 3 नाम? कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। अगर मैंने आपको कभी भी पूछा कितने लेवल, क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन की इंग्लिश की बैंड मत बजाना। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर हु फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी? द आंसर विल बी 3। इंप्लीमेंटेशन ऑल 3 नहीं होता है। ओके, ये इंप्लीमेंट नहीं करता, ये इंप्लीमेंट नहीं करता। इंप्लीमेंटेशन किसका काम होता है? फंक्शनल। ओके, मैंने क्या बोला? रियल लाइफ में काम कौन करता है? फंक्शनल। ओके, ये नहीं काम करते हैं। रियलिस्टिक गोल अचीव करने के लिए काम करेंगे, देखेंगे, बट टेक्निकली आपको याद रखना है। तो मैं कभी बोलूं फॉर्मुलेट कौन करता है? ऑल 3। आई होप क्लियर मालिक? ठीक है मालिक, सी यू टुमारो। आज सलावेस्ता। कल अपने को टेक्स्ट बुक लगेगी, कौन सा वाला? वॉल्यूम 1। ओके, वही कैरी करना है, और आपको 3 कलर के पेन कैरी करने हैं। पहला हो जाएगा आपका रेड, दूसरा हो जाएगा ब्लू, और तीसरा हो जाएगा ब्लैक। रेड रहेगा आपके लिए जो तोड़ इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट है, तोड़ एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ब्लू वाला मॉडरेट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और ब्लैक वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी के रहेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? 3 पेन कैरी करिए ताकि वो डिफरेंशिएट करना आपको आ जाएगा मालिक। सी यू टुमारो। अस्सलाम विस्ता। ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, कोई डाउट मालिक? नहीं नहीं, ये लिखो मत, ये सब अपन डिस्कशन कल से चालू करेंगे। कल के आपकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ लिखने का काम हो जाएगा मालिक। और ऑनलाइन में कुछ मिला नहीं होगा तो कल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, विनोद सर के और प्रशांत सर के टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देता हूं। पीडीएफ शेयर कर देता हूं मालिक, पूरी शेयर की हुई है। विनोद सर और प्रशांत सर के इसमें भी शेयर कर देता हूं, और सब वहां से आप ले सकते हो। विनोद सर और प्रशांत सर का तो सब्सक्राइब किया होगा, उसमें देख लेना। मेरा वाला सब्सक्राइब बाद में करेंगे अपन। ठीक है मालिक? तोड़ मालिक। बुक्स डिस्पैच हो गई होगी, नोटबुक नहीं बनानी है, बुक्स के अंदर ही सब कुछ होगा मालिक। बुक्स डिस्पैच हो चुकी है मालिक, जस्ट ट्रैक करनी होगी आपको। ऑलरेडी कर दिया, देखो आप बोल रहे हो तब तक मैंने विनोद सर और प्रशांत सर में शेयर कर देता हूं। तोड़ भाई।